ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम्। आज नवकार आराधना का नौवा दिन गुरु पापस्थान कितने 18, साधु भगवान के गुण कितने 27, गुरु के गुण कितने 36, आगम कितने 45, आगम 45, 81, 72 અને 101। एक दिन में 6 जोड़े बोलते तो 9 दिन में 54 जोड़े, 5 ने 4 9 અને માળા के मन के 108, પારસનાથ ભગવાન 108, आदिनाथ भगवान 108। એટલે चारों दिशा में चारों संप्रदाय में सब जगह आदिनाथ भगवान की प्रतिमाओं 108 विराजमान હોય છે। પણ વધારે પ્રચલિત પારસનાથ ભગવાનના નામ આવે છે। આજે गिरिराजना खमासना કેટલા 108, गिरिराजની પ્રદક્ષિણા કેટલી 108, गिरिराजના નામ કેટલા 108। ત્યાં ટોક કેટલી છે 9। ત્યાં હમણાં તે આગમ અને જંબુદીપમાં દાદા આદિનાથ ભગવાનની 108 ફૂટની પ્રતિમા બિરાજમાન કરેલી છે। તે બધા 9 9 9 એ જેની જોડ લગાવો એ બધા એ 8 ને 1 9। તે હવે કાલે 14 હતી, તે 14 માં એના 4 અક્ષર બોલું છું। પછી હમણાં એના ઉપર કે પહેલો અક્ષર કયો છે ચ। તે ચ નવકારના કેટલા અક્ષર છે? નવકારના અક્ષર કેટલા? 4 ને 8 ને 9। તો પછી શું ભૂલી ગયા? 9 દિવસમાં ભૂલી ગયા? 8 ને 9 કરવા મળ્યા? અરે ભગવાન, પતી ગઈ આપણી આરાધના, પતી ગઈ। નવકારના અક્ષર 68 અક્ષરમાં કેટલા ચ આવે છે? ચ કેટલા આવે છે? 3 4 5 10 12 15 25 50 25 100 2 3 ચ તે 14 ચ તે બે ચ આવે છે। તો ચ શું કે છે? એક તો સાધુ ભગવંતની સર્વવીરતી ચારિત્ર અને એક સાવક જીવનને દેશવીરતી ચારિત્ર। એ બે ચ એમ કે છે, એ બતાવે છે, કે છે, સમજાવે છે કે પેલો ચ સાધુ ભગવંતનો, સાધુ એમ સાધ્વીજી ભગવંતનો કે સર્વવીરતી ચારિત્ર ધારણ કરેલા છે પંચ મહાવ્રત। અને બીજો ચ 5 અનુવ્રત 12 વ્રત ધારણ કરનારા જે ભાઈ જે સાવક સાવિકા હોય તે દેશવીરતી ચારિત્ર ચ। અને બીજો અક્ષર આવ્યો ચ ઉ શબ્દ આવ્યો। ઉ શબ્દમાં ઉત્તરાધ્યયનમાં હમણાં મેં પહેલા દિવસમાં બોલ્યા હતા, અધ્યયન કેટલા છે? ઉત્તરાધ્યયન અધ્યયન કેટલા બતાવો, કોઈને ખબર ન હોય તો। અશોકજી, બાબુલાલજી, રમેશભાઈ, દિનેશભાઈ, ધરુ, કોઈને કઈ ઉત્તરાધ્યયન કેટલા? 36। તો 36 અધ્યયન, તો 36 અધ્યયનમાં ઉત્તરાધ્યયનમાં પહેલું અધ્યયન, પહેલા અધ્યયનમાં વિનય અધ્યયન છે। અને વિનય અધ્યયન અને 48 ગાથા છે। અને આ ચાતુર્માસ કાળમાં ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર વંચાય છે। અને ગૌતમ સ્વામી ગુરુના વિનય કરતા અને 12 પ્રકારનો તપ છે, 6 બાહ્ય તપ, 6 અભ્યંતર તપ। એમાં વિનય તપ આવે છે। વિનય તપ કરતા ગૌતમ સ્વામી કેવલ જ્ઞાન પામ્યા। અંગૂઠે અમૃત વસે લબ્ધિતના ભંડાર, ગુરુ ગૌતમ સમર્યે મન વાંચિત ફળ દાતાર। ચ અને દ આ ભાઈને આ પાછળ બોલાવો, બેસાડો। એ બોલાવો ને, મહેન્દ્રભાઈ તમે બોલાવો ને। ત્રીજો અક્ષર કયો છે 14 માં? ત્રીજો અક્ષર કયો? કોઈને કઈ ખબર નથી, કાલે જ બોલે તોય। દ અક્ષર આવે છે ત્રીજો દ। એ દ શબ્દ શું કરે છે? કે છે દાન કરો, હંમેશા દાન કરો 360 દિવસ। દયાના ભાવ રાખો, દાન કરો, દયાના ભાવ રાખો, દર્શન કરો, દર્પણ પૂજા કરો, દીપક પૂજા કરો।
એ દ એ કે છે, દ સમજાવે છે, બતાવે છે અને શીખાવે છે. એ દ ચ ઉ ને દ ત્રણ શબ્દ ઉપર તમે ચિંતન કરો. એક જ મિનિટ મારે એમને પૂછવું છે. બંને કાકા કાકા 20 ઉપર બરોબર. અને બીજું તમને શું પૂછવું હતું? તમે શું સારું પછી બસ સારું. અખંડ આરાધના ને દેખજો, ધીરે ધીરે ઉતરજો. સારું. એ દ શું કીધું? દ એ શું કીધું? દાન કરો, દયાના ભાવ રાખો, કરુણાના દયાના વાત્સલ્યના ભાવ રાખો. દાન કરો હંમેશા. એક બોરી કરો કે એક બાળકી કરીને દાન કરો, એક કટોરી ભરીને દાન કરો, પણ ભાવ કેટલા? બહુ ઊંચા, બહુ મોટા ભાવ રાખવાના. અને એ ચોથો શબ્દ, ચલો 14 ચોથા शब्द कौन सा? बड़ावदा सुशील जी का नाम स तो बोलो ने, क्या बोलते रहो तो मेरे को कुछ लगे. हाँ स जैसा कहता है शांति रखो, समता रखो, संतोष रखो अने समाधि में रहो. ये देखो ये नवकार आराधना मंडप है, ये मौन का आराधना मंडप है. ये नवकार की तुम नवकार की आराधना करते हो, तुम नवकार का जाप करते हो. हाँ वो चिल्ला चिल्ली, हाँ वो पुरुष वर्ग कैसे बैठे, महिला वर्ग कैसे बैठे, कहाँ अपनी जगह में. कोई लगता नहीं कि मेरी जगह में मैं अस्थिर हूँ, मैं टट्टार हूँ, व्यवस्थित हूँ. 3 योग से हूँ, मन वचन काया से अस्थिर हूँ. मेरा ध्यान नवकार में है, मेरा चित्त ध्यान नवकार में है, मेरा मन 3 योग में है. कहाँ कोई लगता नहीं है. गुरु आते बार कहते हैं अरे थोड़ा बहुत टकोर से ध्यान रहते, इनके बाद 24 घंटे बिल्कुल खोल ले बांग. चार शब्द 4 शब्द આ આપણે શબ્દ ઉપર જ્ઞાન છે. શબ્દ ઉપર કેટલું મળે છે, કેટલું જાણવા શીખવા સમજવા અને આરાધના સાધના કરવા મળે છે. શબ્દ ઉપરથી એટલું કહેવાય. હવે નવ પદ છે, એને પદ એક તરફ અને નવ એક તરફ, અને નવને ઉલટા કરો તો શું થાય છે આપણે ગુજરાતી ભાષામાં? વન. તે વન એટલે જંગલ. આ જંગલમાં મહાપુરુષોએ મહાસત્યોને આ સ્તંભનો, આ ગીતો, આવા શબ્દો, મંત્રો, શબ્દો ગાઈને પોતાના ભાવોને ઓતપોત કર્યા. અને એવા નવકારના ધ્યાનમાં, એવા જાપમાં, હવે અખંડ જાપમાં નવકારના અખંડમાં રહ્યા તો એના મોટા વિઘ્નો અંતરાય તકલીફો, મોટા વિઘ્નો આયા, પણ એમના વિઘ્નો બધા દૂર ગયા. શ્રીમતી જેવા તો એ આ સ્તવન છે. હવે હું સ્તવન જ બોલું છું, કોઈને ધ્યાન ધ્યાન ધરું સાજને સમાર, મંત્ર એક મોટો નવકાર છે. ધ્યાન ધરું સાજને સમાર, મંત્ર એક મોટો નવકાર છે. આ નવકાર શું કહે છે કે સવારને સાંજ મારું ધ્યાન કરો, મારું સ્મરણ કરો, મારું રટન કરો. રગમાં, નસમાં, દિલમાં, મન મસ્તિષ્કમાં, હૃદયમાં જો મારું સ્મરણ કરશો
તો તમારે કોઈ જાતની તકલીફો આવશે જ નહીં ક્યારે પણ. મોટી મોટી તકલીફો, નાની તકલીફો, શરીરની મોટી નાની તકલીફો, ઘરની, ઓફિસની, દુકાનની, બીજા ઘર પરિવારની, આ એક મંત્રને તમે 24 કલાક રટન કરશો તો તમારે હજારો વિઘ્નો ટળી જશે, હજારો તકલીફો ટળી જશે અને હજારો તકલીફો જાતી રહેશે. આવી રીતે નવકાર, પછી બીજી લાઈન આગળ, નવકાર ધ્યાનથી સુધી પમાય છે, નવકાર ધ્યાનથી સુધી પમાય છે, આસોથી દૂર કરનાર મંત્ર એક મોટો નવકાર છે, આસોથી દૂર કરનાર મંત્ર એક મોટો નવકાર છે. नवकार શું કહે છે? नवकार क्या कहते हैं, क्या बताते हैं કે નવકાર ધ્યાનથી શુદ્ધિ પમાય છે, નવકારના ધ્યાનથી શુદ્ધિ પમાય છે, અશુદ્ધિ सब दूर જાય છે, सब प्रकार की तकलीफों અને અશુદ્ધિ દૂર જાય છે. તો દિવસ ને રાત નવકાર હૃદયમાં રાખો અને શ્રીમતીના જેમ, સુદર્શન શેઠના જેમ, ઓલા ચોરના જેમ, ચોરે આખી જિંદગી ચોરિયા કરી અને પાપ કર્યા અને છેલ્લી ગતિ એની ગતિ સુધરી ગઈ. આ નવકાર એ બતાવે છે. નવપદ નવકારના નવનીત જેવા, નવપદ નવકારના નવપદ નવનીત જેવા, 14 પુરાવનો સાર મંત્ર એક મોટો નવકાર છે, 14 પુરાવનો સાર મંત્ર એક મોટો નવકાર છે. નવપદ હૃદયમાં રાખો, હૃદયમાં રાખશો વાર વાર વાતે ગુજરાતી ભાષા બોલે કે વાતે ડગલે તો તમારે એક વાર તો તમે શ્રીમતી જેવા બની જ જશો. એક વાર પણ શ્રીમતી કેવા હતા? જો પતિના આદેશથી ચાલ્યા તો પતિ હંમેશા કે પતિ પરમેશ્વર, પતિ આદેશથી ચાલ્યા તો શ્રીમતી નાગ ભરેલો ઘડો અને નાગ ભરેલા ઘડાથી આ ઝેરીલો સાપ જે આપણે જીવનથી આપણે મૃત્યુ થઈ જાય કે જોવા દેખવાની મળે તો શ્રીમતીના હૃદયમાં, મનમાં, હૃદયમાં, દિલમાં, આસ્થામાં, મન મસ્તિષ્કમાં, રગમાં નવકાર કેવા ये श्रीमती 24 घंटे नवकार का स्मरण करती थी. 24 घंटा नवकार का स्मरण करती ये पुष्प की माला, नाग, जहरीला नाग पुष्प की माला बन गया. कैसा सुगंधमय, सुगंध ऐसे नवकार, ऐसा ये चमत्कारी नवकार, प्रभावशाली नवकार, 1000 गुणों थी सुशोभित नवकार. હવે બીજો અસ્તણ આગળ આવે છે. નવપદ ના જાપતિ પાપ પલાય છે, નવપદ ના જાપતિ પાપ પલાય છે, ભવના વંદનથી મુક્તિ પામાય છે, ભવના વંદનથી મુક્તિ પામાય છે. अनुपम सिद्धि देनार जीवन सफल बनावे, अनुपम सिद्धि देनार जीवन सफल बनावे. नवपदના જાપથી પાપ પલાય છે, હજારો પાપ ધોવાઈ જાય છે, હજારો પાપ નષ્ટ હો જાય, હજારો પાપ ધૂલ જાય અને ભાવના બંધનથી
આ ભાવ પરભાવ અને ભવોભવથી મુક્તિ પમાય છે. આ નવપદના પ્રભાવથી નવપદ પંચ પરમેશ્વરથી આપણે અશુદ્ધિ દૂરો થાય છે અને નવકાર एक बार केवल एक ही बार भील અને ભીલડી જંગલમાં એક વાર સાધુ ભગવાન મળ્યા અને સાધુ ભગવંતે આ મંત્ર આપ્યો, આ નવકાર આપ્યો, આ નવપદ આપ્યા આપવાથી ભીલ અને ભીલડીના ભાવ સુધરી ગયા. આ એક ભાવ નહીં, આ ભાવ પરભાવ ને ભવો ભાવ સુધરી ગયા. આ ભાવ ભીલ અને ભીલડીથી નવકાર જાપ કર્યા, નવકાર રટન કર્યા, નવકારને મનમાં રાખ્યા, નવકારમાં હૃદયમાં ઉતાર્યા, નવકારમાં મન મસ્તિષ્કમાં ઉતાર્યા અને હજારો મંત્ર ભીલડીને પાસે હજારો મંત્ર था, पर सब मंत्र छोड़ के यंत्र तंत्र ने मंत्र को छोड़ के केवल एक नवकार मंत्र ले लिया. गुरु मुख से नवकार मंत्र ले लिया, नवकार मंत्र रटन कर लिया. गुरु ने बताया कि इनका स्मरण करना, इनको रटना, बार इनको रटना, तो तेरा भाव, तेरी गति सब सुधर जाएगी. सर्व मंगल प्रारंभ. मंगलाचरण गुरुदेव के मुखारविंद से मंगलाचरण प्रारंभ हो रहा है. कृपया शांति से अपना स्थान ग्रहण करें और कोई भी छोटी छोटी सूचना देने के लिए बार मंच पर नहीं आए. हमारे कार्यकर्ता को आप पर्ची दे दें, नीचे हमारे कार्यकर्ता खड़े हैं, इस बात का भी ध्यान रखें. जिन शासन सारो 14 पुराण जो समुद्धारो जस मणे नवकारो संसारो तस् किम कुणई. परम पवित्र जैन शासन एवं परम पावनी वाणी परमात्मा की संसार के समस्त जीवों को बंधनों से मुक्ति की ओर ले जाने का अनादिकाल से काम कर रही है. नवकार करे भव पार की बात को अपन ने कई बार सुना है और सही है. नवकार की कौन करने लाना अबे नहीं, ये हो ही जाए वरना बाद में कर लो. फिर मंदिर में गए हम तब तक सब कर ले रही थी पूजा. महामंत्र नवकार कितना शक्ति संपन्न है, इस बात को तो अपन कई बार सुन चुके हैं. तन को, मन को, अपने स्वयं के आत्म प्रदेशों को निर्मल करने का काम नवकार करता है. नवकार का श्रद्धापूर्वक स्मरण किया हो तो निश्चित नवकार की आस्था श्रद्धा हमारे जीवन में आने वाली अनेक विपदाओं का निवारण विधान करके हमको संपदा से परिपूर्ण कर सकता है. नवकार को हम अंतर की आस्था से यदि जीवन में स्मरण करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, साधना करते हैं, उपासना करते हैं, तो निश्चित नवकार हमें अपनी श्रद्धा के बल पर हमारी आई हुई तमाम विपदाओं का निवारण कर देता है. अपने कईयों के दृष्टांत सुने हैं. नवकार के प्रभाव से नाग फूलमाल बन सकता है, सूली सिंहासन बन सकती है. अरे इससे भी आगे आग जल बन सकता है. जल बन करके अग्नि, जल बन करके और उस
व्यक्ति के जीवन में परम शांति प्रदायक बन जाता है, ऐसा नवकार श्रद्धा सबसे बड़ी संजीवनी बूटी है। श्रद्धा सबसे बड़ी शक्ति है, जिस शक्ति के बल पर हमारे जीवन में हम अनेक प्रकार के अपूर्व ऐसे कार्य कर सकते हैं जो स्वप्न में भी अपने को कभी मालूम नहीं पड़ते। नवकार को अपना महामंत्र माने और नवकार जिसके पास, उसके पास कोई भी भूत व्यंतर डाकनी साकनी कोई नहीं आते। मैं वही वर्षों पहलों की एक बात कहूँ, अहमदाबाद में एक बहन जिसको नवकार उवत्सगहरम प्रतिदिन गिनने का एक नियम था, रोजाना उठ करके नवकार उवत्सगहरम गिनती, किसी प्रकार की कोई भी उसके सामने कठिन समस्या आती तो नवकार उवत्सगहरम को गिनने बैठ जाती। ऊपर वो रहती थी, नीचे उसकी जेठानी रहती थी। जेठानी जब काल कर जाती है और काल करने के बाद उसके छोटे छोटे बच्चे थे। एक दिन वह आकर के घर के द्वार खटखटाती है और कहती है कि दरवाज़ा खोलो। तो उसके घरवाले श्रावक ने कहा कि अब तुम चले गए, अब यहाँ क्या जरूरत है, तो आई हो, जाओ यहाँ से ऊपर जाओ, तुम्हारी देरानी ऊपर है, उससे मिलोगे। तो वो कहती है कि ऊपर तो कैसे जाऊँ, वो नवकार उवत्सगहरम गिन रही है, नवकार उवत्सगहरम जहाँ से हैं वहाँ मेरी शक्ति नहीं चलती है। सुबह में मुझे आकर के बात कही तो मैं आश्चर्य पड़ गया कि सच में नवकार उवत्सगहरम गिनने से आने वाले भूत प्रेत भी दरवाजे से अंदर, दरवाजे के अंदर नहीं आ सकते हैं, पर श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा है तो सब कुछ हो सकता है, श्रद्धा नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। अपने यहाँ श्रद्धा के विषय में अनेक ऐसे दृष्टांत हैं, जैन एवं अजैनों में भी दृष्टांत हैं। श्रद्धा आदमी की है तो श्रद्धा से आदमी जीतता है, श्रद्धा से आदमी अपनी नैया को पार करता है। कुछ भी भले न हो, लेकिन श्रद्धा यदि है तो एक महान काम बन जाता है। आप सब लोगों ने सुना होगा आनंद घनजी का नाम। आनंद घनजी नाम सुना आपने? सबको मालूम है आनंद घनजी नाम? आनंद घनजी जंगल में साधु बन करके साधना में मस्त रहते थे। उनके पास में किसी बात का परिग्रह नहीं था और उनको किसी से कोई मतलब नहीं था। जब उपवास का पालना करना होता था तो गांव में आते थे और जो मिल जाता वो लेकर के लौट जाते थे। ऐसा करते करते आनंद घनजी का नाम एक प्रभावशाली साधु के रूप में चारों तरफ फैल गया। सब लोग कहें कि आनंद घनजी के पैर अगर अपने घर में पड़ गए तो अपन तो निहाल माला माल हैं। आनंद घनजी के पैर अपने घर में लाने के लिए कई लोग तड़पते थे। जंगल से गांव में आए तो लोग विनंतियां करते थे, हमारे घर चलो, हमारे घर चलो। आनंद घनजी कहते मुझे चाहिए नहीं कुछ भी, तो मैं तुम्हारे घर आके क्या करूं, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। मैं तो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण वस्त्र पहनता हूँ, एक टाइम भोजन करता हूँ, उपवास और आय मिल मेरे चलते हैं, मैं तुम्हारे घर आके क्या करूँगा।
कई पैसे वाले कहते, कई सामान्य घर वाले कहते आप चलो। आनंद घन जी कहते कि मेरा योग होगा तो आऊँगा, बस मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। आनंद घन जी का इतना प्रभाव फैल गया कि आनंद घन जी ने जहाँ पैर रखा वहाँ काम, सामने वाले का असाध्य काम भी सहज में साध्य हो गया। आनंद घन जी का प्रभाव और आनंद घन जी की ये शक्ति का चारों तरफ प्रचार हो गया। आनंद घन जी तकलीफ को दूर करते हैं, ऐसा लोगों ने सुन लिया, समझ लिया, मान लिया। इधर इस नगर, एक नगर के अंदर राजा राज्य करता था, राजा को रानी थी। राजा रानी को आपस में बनती नहीं थी, दोनों की आपस में बनती नहीं थी। रानी हमेशा परेशान रहती थी कि किसी तरह से राजा को मैं समझाऊं या राजा मेरी बात मान ले, पर राजा मानते नहीं थे। किसी ने कहा, रानी साहब आनंद घन जी के पैर अपने घर पर पड़वा दो, आनंद घन जी को आपके महल में बुलवा लो। अगर वो आपके महल में आ गए तो आपकी ये सारे संकट दूर हो जाएंगे। आनंद घन जी उसी दासी को कहते हैं, तू देख आनंद घन जी गाँव में कब आते हैं। और कुछ दिन गए और अचानक खबर मिली कि आनंद घन जी आ रहे हैं। दासी जाती है, हाथ जोड़ती है, विनयपूर्वक कहती है, महाराज आप हमारी रानी के महल में पधारो। आनंद घन के मेरे को क्या है, महल से क्या मतलब, महल हो के झोंपड़ी हो, मेरे तो एक तरीका है, मैं तो जंगल का जोगी हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं। दासी कहती है कि आप कम से कम हमारी महारानी को, उनकी इच्छा है तो महारानी को दर्शन तो दे दो। आनंद घन जी कहते हैं कि मैं आता हूँ, जिसको दर्शन करना हो कर ले, किसी के लिए मैं स्पेशल कहीं नहीं आता जाता हूँ। दासी ने कहा कि आनंद घन जी आए, लेकिन अपने घर पर कोई आने का, विनती करने से आने का चांस नहीं। तो फिर कि जब आनंद घन जी आए न, तब आप जिस रास्ते से वो चले उस रास्ते में जाके खड़े रहिए। एक दिन आनंद घन जी आए पूना गांव में, जिस रास्ते से आ रहे थे उस रास्ते पर वो रानी जाके खड़ी रह गई। रानी ने कहा, महाराज आप मेरे महल में पधारिए। आनंद घन जी कहते, मुझे कहीं किसी महल में जाने की आवश्यकता नहीं, मैं नहीं आ सकता हूँ। महाराज एक बहुत बड़ी तकलीफ है हमारे। क्या तकलीफ है? साधु का जी मन कोमल होता है, और कोमल मन के आनंद घन जी कहते हैं क्या तकलीफ है? क्योंकि महाराज राजा से मेरे बनती नहीं, राजा मेरे से बोलते नहीं, राजा मेरा नाम लेते नहीं। राजा का मन ठीक हो जाए, हमारे दोनों को आपस में बन जाए, ऐसा कोई तावीज भर के दे दो, कोई एक मादलिया भर के दे दो। आनंद घन जी ने कहा कागज लाओ। कागज मंगाया और वहीं आनंद घन जी ने कागज पर लिखा, राजा रानी को बुलाए तो भी आनंद घन को क्या, और राजा रानी को न बुलाए तो भी आनंद घन को क्या। ये मंत्र लिख दिया। रानी को श्रद्धा थी, विश्वास था, तो वो आनंद घन जी ने कागज लिख के दिया, उसको मोड़ करके घड़ी करके और तावीज में रख दिया, और तावीज रानी ने पहन लिया। कुदरती योग की बात, संयोग की बात। हफ्ता 10 दिन गए होंगे और एक दिन राजा रात को 12 बजे रानी के महल के ऊपर आए और दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोलो। तो रानी कहती है, आप कौन हैं? कि मैं राजा हूँ। रानी कहती है कि आपने तो मेरे को कब से ही बिल्कुल बोला करके छोड़ दिए, और अब आप मेरे यहाँ आए कैसे मानूं? कि मैं कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, मैं आया हूँ तो मान। रानी ने बंगला अपना किवाड़ खोला
राजा जी आए और रानी के प्रति जो दुर्भाव था वो उन्होंने मिटाया और सद्भाव से राजा रानी मिले। आपस में प्रेम भाव बढ़ने लगा और रानी के दिल में हुआ कि महाराज ने मेरे को कोई जोरदार मंत्र लिख करके दिया दिखता है। उस मंत्र का प्रभाव कि 10 दिन में राजा का मन बदल गया। 10 दिन में राजा एकदम मेरे ऊपर जो नाराजी थी वो राजा जी छोड़ और मेरे पर प्रेम बताने लगे। अब सब दिन चलते गए और पुनः आनंद घन जी एक बार आए। रानी जाती है, आनंद घन जी को वंदन करती है और कहती है कि महाराज आपने कोई जोरदार मंत्र लिखकर मेरे को दिया। उस मंत्र के प्रभाव से मेरे प्रति राजा जो अबोला लेके बैठे थे, मेरे प्रति उनका दुर्भाव था वो सब मिट गया। वो सब मेरे से एकदम प्रेम करने लगे। आपने अच्छा मंत्र मुझे लिख के दिया। रानी ने कहा, राजा भाई आनंद घन ने कहा कि वो मादलिया लाओ। वो ताबीज मादलिया लाया। आनंद घन जी ने खोला, उसने से कागज निकाला और निकाल कर रानी को पढ़ाया कि देख इसमें क्या लिखा है। तो उसमें तो ऐसे लिखा था कि राजा रानी को बुलाए तो आनंद घन को क्या, और न बुलाए तो भी आनंद घन को क्या। रानी कहती है कि ये मंत्र मेरे तो मंत्र तो कोई करना ही नहीं था, अब तेरा आग्रह था तो मैंने तेरे को लिख के दिया। मेरे कागज में तेरा विश्वास, मेरे कागज में तेरी श्रद्धा, तेरी श्रद्धा का बल, तेरी श्रद्धा के बल ने तेरे को राजा के साथ अनबन थी वो प्रेम में पलट दी। आखिर मेरे इस कागज ने कुछ नहीं किया, तेरी श्रद्धा ने, तेरे विश्वास ने ये किया है। रानी आनंद घन जी को प्रणाम करती और कहती है महाराज गजब है आपकी बात को। आनंद घन जी कहते हैं रानी जीवन में श्रद्धा को रखना कायम। श्रद्धा रहेगी तो सुखी रहोगी, कहीं दुख नहीं आएगा। और श्रद्धा अगर डिग गई तो कभी भी कहीं सुखी नहीं हो सकोगे। इस प्रकार आनंद घन जी ने श्रद्धा की बात बताते हुए कहा कि हम नवकार की आराधना करते हैं, हम नवकार के आराधक हैं, नवकार के पुजारी हैं। नवकार की बात हमारी नस नस में, नाड़ी नाड़ी में नवकार की बात रही हुई है। हम नवकार के सिवाय दूसरा कुछ नहीं दिमाग में रखें तो अनेक प्रकार के आने वाले संकट सहज में टल जाते हैं। श्रद्धा ये संजीवनी बूटी है, मुर्दे को जिंदा करने की ताकत संजीवनी में है। वैसे ही संसार में आई हुई आफतों को समाप्त करने की नवकार रूप संजीवनी में शक्ति है। हम नवकार को अपना जीवन मंत्र बना लें, हम ध्यान रखें नवकार हमसे छूट न जाए, नवकार हमसे दूर न जाए, नवकार से हम कहीं भटक न जाए। इस बात का आराधना करते आराधकों को ध्यान रखना है। नवकार की आराधना करने वाले या जिसके मुंह से नवकार बोला जाता है वह व्यक्ति हमेशा समता और शांति का खजाना भंडार होता है। उसको उसके दिमाग में, उसके मन में, उसके विचारों में, उसकी वाणी में कहीं पर भी कोई गर्मी नहीं होती है। प्रसन्नता ये नवकार की आराधना का परिणाम है, फल है। हम कोशिश करें, हम प्रयास करें हमारे जीवन के अंदर ये नवकार मंत्र हमारे साथ जुड़ा हुआ रहे। जिस प्रकार एक अंगूठी में नंग जड़ा हुआ रहता है तो अंगूठी के उस नंग के कारण से अंगूठी की शोभा और अंगूठी की कीमत दोनों बढ़ जाते हैं। वैसे ही नवकार का नंग, नवकार रूप नंग हमारे जीवन की इस अंगूठी में अगर जड़ा हुआ रहता है तो हमारा जीवन निश्चित रूप से कीमती, सुशोभित और व्यवस्थित माना जा सकता है। तो आज
अपन सब नौकार आराधना का अंतिम दिन है और आज के दिन अपने को आराधना का आयोजन करने वाले आयोजक श्री चेतन कुमार जी काश्यप का बहुमान करना है आराधक परिषद की तरफ से। और चेतन जी कुमार सब जने दुनिया के अंदर प्रभावना बांटते हैं, आप लेके जाते हैं, खुश हो जाते हैं। किसी ने आपको बैग दे दी, किसी ने आपको वो ये कागज बाग रखते क्या कहते हैं उसको, किसी ने बैग दे दी, किसी ने फाइल दे दी, किसी ने आपको उठा करके कुछ और चीज़ ला के इनाम दे दी प्रभावना में, तो आप खुश हो गए। किसी ने बर्तन दे दिया तो सब हमको बहुत बढ़िया काम किया। ये सब संसार बढ़ाने की चीज़ें सबने दी, संसार बढ़ाने की चीज़ें सबने दी। चेतन कुमार जी का भाव कि संसार बढ़ाने की बात नहीं, मैं तो इन लोगों को संसार घटाने की वस्तु मेरे तरफ से भेंट स्वरूप दूंगा। मैं संसार को घटाने वाली वस्तु देकर उनके द्वारा किया जाने वाला जाप, उस जाप का मुझे भी थोड़ा लाभ होगा। ये तो निश्चित है कि जो अच्छा काम करता है उसका परिणाम, उसकी अनुमोदना करने वाला भी पाप से छूटता है, पाप से बचता है और अनुमोदना करने वाला पुण्य की वृद्धि कर देता है। तो चेतन कुमार जी आपको प्रभावना देने वाले हैं। मेरा ख्याल है वे धार्मिक उपकरणों को देने वाले हैं। आप उन धार्मिक उपकरणों का घर जाकर के उपयोग कर धर्म आराधना कर और आयोजक के जीवन में भी आपकी आराधना का कुछ अंश पहुँचे, ऐसा आप सबको करना है। तो अब अपन शुरू कर रहे हैं, उसके पहले अपने यहाँ कोई विशेष अतिथि आए हैं, उनका भी थोड़ा सा अपन सुन लें प्रवचन। चेतन जी आए ने अभी प्रवचन किसी का हो उसके पहले एक पुस्तक नवकार आराधक परिषद की ओर से प्रकट हुई है, प्रकाशित हो रही है। इसका नाम है नवकार करे भवपार। नवकार विषय की, नवकार आराधना, नवकार करे भवपार, नमो मन से नमो तन से, नवकार पर जो पुस्तकें लिखी हैं उन सब पुस्तकों की एक पुस्तक, तीनों पुस्तकों का एक वॉल्यूम, उसका विमोचन अभी यहाँ किया जा रहा है। विमोचन के लिए चेतन बोलो जल्दी जल्दी जल्दी। बोले राष्ट्र संत कच्छाधिपति वर्तमान आचार्य श्रीमती जय जैन सेन सुजय महाराज साहब की, गुरुदेव की में जैन सेन धाम मंडल मुनि सुवत स्वामी परमात्मा की प्रतिष्ठा निर्विघ्न संपन्न हुई और इसके साक्षी रहे नवकार आराधक परिवार के साथ साथ समस्त धर्मालु जन, जिनके सानिध्य में, जिनकी गुरुदेव की निश्रा में प्रतिष्ठा निर्विघ्न संपन्न हुई। चूंकि चातुर्मास चल रहा है और प्रतिष्ठा के अंतर्गत संघ का, आयोजक परिवार का एक दायित्व रहता है कामली वहराने का, पर चूंकि चातुर्मास के दौरान पूज्य गुरुदेव कामली नहीं वहरते हैं, इस निमित्त काश्यप परिवार गुरुदेव की गुरु पूजन स्वर्ण मुद्रा से करेंगे। मैं इसके लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान चेतन कुमार साहब काश्यप परिवार से कि वे आए और गुरुदेव की गुरु पूजा स्वर्ण मुद्रा से करें। ग्रामीण विधायक श्री मथुरलाल जी साहब डामर भी हमारे बीच में हैं, सिद्धार्थ भैया, श्रवण भैया, जब माहौल इतना हर्षोल्लास होता है और हम शांत बैठे रहते हैं। बोले राष्ट्र संत कच्छाधिपति वर्तमान आचार्य श्रीमती जैन सेन सुजी महाराज साहब की। जैसा कि गुरुदेव ने फरमाया नवकार करे भवपार पुस्तक का विमोचन
परम पूज्य गच्छाधिपति गुरुदेव श्री जैन सेन श्री महाराज साहब द्वारा दिए गए नौकार पर व्याख्यान का संकलन है, मैं विमोचन करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं चातुर्मास आयोजक और शहर विधायक श्री चैतन्य साहब काश्यप, संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वागजी भाई साहब वोरा, परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रमेश भाई बच्चू भाई धरू, श्री जेके संघवी साहब, मध्य प्रदेश इकाई के श्री सुरेश जी साहब तातेड़, सुजानमल जी साहब कटारिया राणापुर वाले और जयवंत राज जी साहब वाणी गोता बीजापुर वाले शीघ्र मंच पर पधारे। श्री चैतन्य साहब काश्यप शहर विधायक, चातुर्मास आयोजक श्री वागजी भाई वोरा राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री रमेश भाई धरू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, श्री जेके संघवी साहब, मध्य प्रदेश इकाई के श्री सुरेश जी तातेड़, श्री सुजानमल जी साहब कटारिया राणापुर वाले और श्री जयवंत राज जी साहब वाणी गोता बीजापुर शीघ्र मंच पर पधारे। नौकार पर व्याख्यान का संकलन, पुस्तक का विमोचन, प्रतीकात्मक स्वरूप हमारे अतिथियों के कर कमलों से गुरुदेव की निश्रा में संपन्न होने जा रहा है। नौकार आराधना के दौरान गुरुदेव द्वारा गुरुदेव की मुखारविंद से प्रवचन श्रृंखला का कतारबद्ध एक पुस्तक में संकलन करना और इतनी जल्दी निश्चित ही गुरु कृपा ही है। बोले दादा गुरुदेव की। चातुर्मास आयोजक परिवार श्रीमान चैतन्य कुमार साहब काश्यप का, मातुश्री तेज कौर भाई काश्यप, श्रीमती निष्ठा जी काश्यप का नौकार आराधना परिषद की ओर से यहाँ स्वर्ण रजत सम्मान समारोह के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री रमेश जी मेहता नाकोड़ा आशीर्वाद, श्री सुरेश चंद जी ज्ञान चंद जी साहब मेहता खाचरोद, श्री रमणीक लाल जी प्रकाश चंद जी साहब तलेरा, श्री गुमान मल जी पारस मल जी साहब मिठालाल जी, श्री महेंद्र जी संघवी, श्री अशोक जी श्री श्रीमाल, ये सभी समस्त शीघ्र मंच पर पधारने का कष्ट करें। श्री रमेश जी मेहता, श्री सुरेश चंद जी ज्ञान चंद जी साहब मेहता खचरोद, श्री रमणीक लाल जी प्रकाश चंद जी तलेसरा उज्जैन, श्री गुमान मल जी पारस मल जी मिठालाल जी गांधी मुथा सायला, श्री महेंद्र जी संघवी, नरपत भाई वीरचंद जी थराद वाले, श्री अशोक जी श्री श्रीमाल। बहुमान के पश्चात श्री अशोक जी श्री श्रीमाल द्वारा एक बहुत ही सुंदर प्रशस्ति पत्र जो कि हृदय से भाव उद्गार हुए हैं और चातुर्मास आयोजक को समर्पित करना चाहते हैं। बहुमान के पश्चात में अशोक जी श्री श्रीमाल से अनुरोध करूंगा कि बिना भूमिका के वे इस प्रशस्ति पत्र का वाचन करें। मातुश्री तेज कौर भाई कश्यप और नीताजी कश्यप से अनुरोध करूंगा कि वे भी मंच पर पधारने का कष्ट करें। श्रीमती नीताजी कश्यप मातुश्री तेज कौर भाई कश्यप को मंच पर लेकर पधारे। नौकार आराधक परिषद उनका भी बहुमान करना चाहते हैं। अशोक जी महिला की तरफ से किसको आमंत्रित करूं? आपका नाम? एक मिनट नहीं पढ़ पाएंगे, ऐसे छोड़। विधायक, राष्ट्रीय परामर्शदाता, अखिल भारतीय श्री सोधर्म बृहत तपोगच्छीय त्रिस्तुतिक जैन श्री संघ तथा लाभार्थी चातुर्मास 2016 के कर कमलों में समर्पित अभिवंदन पत्र धर्म शिरोमणि महिमामयी व्यक्तित्व के अगणित तथा अलौकिक सद्गुणों के समुच्चय से शोभित आपका जीवन सार्थक, सर्वांगीण तथा साधन उन्नयन के अनुकरणीय स्वर्ण उदाहरण में रूपांतरित हो गया। आप जैसे ध्येयनिष्ठ कुलदीपक तथा दानवीर पुरुष का अभिनंदन आज रत्नपुरी रतलाम जैसी धर्म नगरी के पवित्र प्रांगण में वचन सिद्ध युग प्रभावक समाज सौरभ के सर्वोपरि आलोकपुंज सुविशाल गच्छाधिपति संयम दानेश्वरी जैनाचार्य श्रीमद विजय जैन सेन श्री जी महाराज साहब जी के वरदायी सानिध्य में करते हुए विशाल नौकार परिवार प्रसन्न, प्रमुदित तथा प्रहर्षित है।
आपने अपने दादा साहेब श्री कन्हैयालाल जी काश्यप, दादी साहेब श्रीमती झमकूबाई, पिता स्वर्गीय अशोक कुमार जी तथा पूज्य माता जी श्रीमती तेज कुंवर जी काश्यप के जीवन में सुरभित संस्कारों का स्पर्श कर जीवन को देवगुरु धर्म की आराधना में पूर्ण मनोयोग व संसाधनिक दानवीरता के साथ सर्रत कर रखा है, यह स्तुत्य है। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती नीता काश्यप, सुयोग्य सुपुत्रगण श्री सिद्धार्थ जी एवं श्री श्रेणिक जी तथा पुत्र वधुएं श्रीमती पूर्वी जी तथा श्री अमी जी अपनी धर्मशीलता एवं असीम पर मित श्रद्धा भाव युक्त गुरु भक्ति का अनुपम उदाहरण है। हम सभी आपका अभिनंदन करते हैं। सफल समाज सूर्य, धर्म तथा समाज के विभिन्न संस्थाओं में राष्ट्रीय पदों पर सुशोभित रहते हुए आपने निरंतर अपनी ऊर्जा व नेतृत्वशीलता से उन्हें श्रृंगारित किया है। आप श्री राजेंद्र तीर्थ दर्शन न्यास, श्री मोहन केड़ा तीर्थ, श्री कंचन गिरी धर्मशाला जालोर के अध्यक्ष पदों पर एवं अखिल भारतीय श्री सोधर्म व्रत तपोगच्छीय त्रिस्तुतिक जैन श्री संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर गौरवशाली अध्यायों की संरचना करने में सफल हुए हैं। हम इस हेतु आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप वर्तमान में रतलाम विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित विधायक हैं। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक प्रगतिशील युवा उद्योगपति हैं। आप राजनीति, समाज सेवा, उद्योग तथा प्रज्ञा के आकाश में ज्वाज्वलिमान नक्षत्र रूप में मान्य हैं। आप समाज की थाती हैं, धरती के गरिमा गौरवशाली रत्न हैं, त्रिस्तुति समाज की धर्म श्रेष्ठ मणि हैं। इस वर्ष सुविशाल गच्छाधिपति राष्ट्र संत जैनाचार्य श्रीमद विजय जैन सेन सुरीसर जी महाराज साहब जी का रतलाम में चातुर्मास का आप अपनी ओर से प्रायोजन समग्र कुशलता, उदारता, समर्पणता, सुसंचालन एवं सौम्य परिलब्धियों की प्राप्ति के साथ कर रहे हैं। संपूर्ण जैन समाज तथा मालवा के दानवीर भामाशाह के रूप में आपकी कीर्ति संपोषित हो रही है। हम अपने सुदीर्घ, सफल, सुवस्थ, सुश्रमद्ध, सुस्वस्थ एवं सरस जीवन की मंगल, शुभ, श्रीकारी भावना के साथ कामना करते हुए यह अभिनंदन पत्रम पुष्पम के रूप में समर्पित कर रहे हैं। विनयावत श्री नौकार मंत्र आराधक परिषद के समस्त आराधक गण जो संपूर्ण भारत से आए हुए हैं। रतलाम चातुर्मास 2016, मिति श्रावण विधि पूर्णिमा, गुरुवार दिनांक 18 अगस्त 2016, विक्रम संवत 2003, राजन संवत 110, रतलाम मध्य प्रदेश। प्रशस्ति पत्र के लिए शीघ्र जेके संघवी साहब, रमेश भाई धरू, अशोक जी श्री श्रीमाल। बोले राष्ट्र संत गच्छाधिपति वर्तमान आचार्य श्रीमती जय जैन सेन सुजी महाराज साहब की। नौकार आराधक परिषद के हृदय से उद्गार ये प्रशस्ति पत्र, जिसे विशेष तौर पर नौकार आराधक के कुछ महानुभावों ने अपनी भावनाओं के साथ तैयार किया और रतलाम में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना है कि आज तक इतने आराधक एक साथ बैठकर यहाँ पर नौकार मंत्र का 3.5 करोड़ मंत्र का लगभग जाप रतलाम की इस जैन सेन धाम पावन धरा पर होना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। नौकार आराधक परिषद लगातार 9 दिनों से हमारे बीच, इस दरमियान हमारी ओर से, हमारे कार्यकर्ताओं की ओर से, चातुर्मास आयोजक परिवार की ओर से कोई भी अनुनय विनय हुआ हो तो उसके लिए मिच्छामि दुक्कड़म करते हुए मैं श्री मातुश्री तेज कुंवर कश्यप, श्रीमती निचादी कश्यप,
श्री चैतन्य जी कश्यप, चातुर्मास आयोजक परिवार के सिद्धार्थ जी और श्रवण जी से अनुरोध करूंगा कि प्रतीकात्मक स्वरूप संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के एक एक प्रतिनिधि का मैं नाम पुकार रहा हूं। गुजरात की प्रतिनिधि श्री महेंद्र भाई 27 वर्ष से जो आराधना कर रहे हैं, महेंद्र भाई कृपया मंच पर पधारे हैं। ये सिर्फ आराधकों के लिए एक प्रतीकात्मक प्रभावना है, इसमें आपके प्रवचन की प्रभावना भी इंक्लूड है। तत्पश्चात दोपहर एकाशने के पश्चात आपको हमारे काउंटर्स पे अपने कार्ड दिखाकर प्रभावना प्राप्त करना है। अभी सिर्फ गुरुदेव की निश्रा में 4 दिशा में हम प्रभावना वितरित कर रहे हैं। गुजरात के श्री महेंद्र भाई, राजस्थान के श्री अशोक जी गुरुमाल जी, दक्षिण भारत से श्री मांगीलाल जी साहब वेद मुथा और मध्य प्रदेश से श्री सुजानमल जी साहब, जिनकी 51वीं आराधना पूर्णता की ओर है। श्री महेंद्र भाई जो कि जिनका नाम ही महेंद्र भाई उपासक, उपास हमेशा उपास करते रहते हैं। मातुश्री तेजकुर भाई कश्यप, श्रीमती नीताजी कश्यप, श्रवण जी कश्यप, सिद्धार्थ जी कश्यप प्रतीकात्मक स्वरूप पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए चारों प्रांत से हमने एक एक प्रतिनिधि को लिया है। सर्वप्रथम गुजरात प्रांत के श्री महेंद्र भाई, जिनकी तपस्या में अभी गुरुदेव ने भी बखान किया था, 108 उपास, 65 उपास, ऐसे तपस्वी आराधक को प्रतीकात्मक स्वरूप हम नौकार आराधना की प्रभावना एवं उसमें संलग्न प्रवचन प्रभावना। इसी कड़ी में राजस्थान के श्री अशोक जी गुरुमाल साहब कृपया पधारें। बोलिए राष्ट्र संत कच्छाधिपति वर्तमान आचार्य श्रीमती जैन सेन श्री महाराज साहब की। दक्षिण भारत से श्री मांगीलाल जी साहब वेद मुथा और मध्य प्रदेश से श्री सुजानमल जी साहब कटारिया राणापुर वाले, जिनकी 51वीं आराधना पूर्णता की ओर। ऐसे आराधक परम गुरुभक्त श्री सुजानमल जी साहब का प्रवचन प्रभावना देकर आयोजक परिवार अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। सर्वविदित है कि आजकल जमाना है एक के साथ एक फ्री, और हमें भी इस चातुर्मास के दौरान नौकार आराधना के साथ साथ प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभ अवसर एक के साथ एक सानंद आज आप सबकी उपस्थिति में हर्षोल्लास के साथ प्रतिष्ठा संपन्न हुई। ऐसे मुनि सुवत स्वामी परमात्मा के जिन बिंबों की जिन्होंने विधि कारक ने सविधि गुरुदेव की निश्रा में संपूर्ण पूजन हमसे करवाई हमारे आयोजक परिवार से, ऐसे श्री सत्य विजय जी हरण विधिकारक और श्री प्रसन्न जी जो चेन्नई से पधारे हैं, श्री सत्य विजय जी हरण और श्री प्रसन्न जी चेन्नई से पधारे हैं, शीघ्र मंच पर आए। श्री सत्य विजय जी और श्री प्रसन्न जी, श्री सत्य विजय जी और प्रसन्न जी विधिकारक साहब, श्री त्रिलोक जी विधिकारक, श्री त्रिलोक जी विधिकारक शायद मंदिर की कुछ गतिविधियों में व्यस्त हैं, तब तक में श्री कांतिलाल जी साहब तीनों ही विधिकारक व्यस्त हैं। ये जैन सन धाम की आप जो महिमा देख रहे हैं और जो सुंदर मंदिर का निर्माण हुआ, ऐसे श्री सोमपुरा श्री देवेंद्र भाई जी सोमपुरा अहमदाबाद वाले से मैं अनुरोध करूंगा कि वे मंच पर आएं और चातुर्मास आयोजक परिवार की ओर से बहुमान ससम्मान ग्रहण करें। श्री देवेंद्र भाई सोमपुरा। श्री देवेंद्र भाई जी सोमपुरा, जिन्होंने बहुत ही कम समय में जिन मंदिर गुरु मंदिर का शानदार भव्य निर्माण आप लोग समझ किया। सोमपुरा जी के पुत्र श्री हार्दिक जी सोमपुरा वे भी पधारे।
विधि कारक श्री सत्यविजय जी हरण और प्रसन्न जी अगर चेन्नई वाले आगे हैं तो कृपया शीघ्र जी की मंच पर पधारें। श्री त्रिलोक जी विधि कारक और श्री कांतिलाल जी साहब। हार्दिक भाई सोमपुरा का बहुमान श्री सिद्धार्थ जी काश्यप द्वारा। श्री देवेंद्र जी सोमपुरा के पुत्र हार्दिक जी सोमपुरा जिनके अथक प्रयासों से चातुर्मास आयोजक श्री चैतन्य साहब काश्यप और सुशील जी छाजेड़ की निगरानी में इतना भव्य तीर्थ का निर्माण यहाँ हुआ। बोले राष्ट्र संत गच्छाधिपति वर्तमान आचार्य श्री जैन सेन सूजी महाराज साहब की। पूज्य मुनिराज श्री निपुण रत्न विजय जी महाराज साहब जिनके मुखारविंद से हम प्रतिदिन प्रवचन का श्रवण कर अपने जीवन में धर्म की ओर अग्रसर होने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में पूज्य मुनिराज श्री निपुण रत्न विजय जी महाराज साहब के मुखारविंद से प्रवचन विमोचन नहीं करवा बुक नो तो विमोचन करवा दो पेपर बाद में देंगे बाबी जा रहे विमोचन करवा दो एक ये विमोचन हेलो ठीक। परम पूज्य आचार्य श्री जैन सेन सूजी महाराज साहब के अभिधान राजेंद्र कोश पर आधारित प्रवचन का संकलन राजेंद्र कोश में ओपन बुक एग्जाम पुस्तक का विमोचन चातुर्मास आयोजक श्रीमान चेतन कुमार साहब काश्यप से अनुरोध करूंगा कि वे इस पुस्तक का विमोचन करें। और ये पुस्तक आपको प्रवचन पांडाल के बाहर जिसके प्रश्नोत्तर इसमें सम्मिलित हैं आपको पुस्तक की कीमत दोनों पुस्तक की कीमत का नखरा मात्र 20 रुपये रखा गया है। और इस पुस्तक में से देखकर आपको सारे प्रश्नों का उत्तर भरना है जिसका प्रथम पुरस्कार 2100 रुपये चातुर्मास आयोजक परिवार की ओर से, द्वितीय पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार एवं सांत्वना पुरस्कार अनेक पुरस्कार हैं। ऐसी पुस्तक का विमोचन गुरुदेव की निशा में चातुर्मास आयोजक परिवार की ओर से। पुस्तक का नाम है राजेंद्र कोश में अ की महिमा। हेलो चेक। श्री वागजी भाई वोरा, श्री मथुरा जी साहब डामर, श्री परमेश्वर जी महिड़ा और रमेश भाई धरू शीघ्र आए। रमेश भाई धरू शीघ्र आए। नौकार में राजेंद्र कोश में अ की महिमा जो कि ओपन बुक एग्जाम है और हमारे परिषद के कार्यकर्ताओं के पास से आप इसके प्रश्न पत्र प्रवचन के पश्चात प्राप्त कर सकते हैं। श्री अशोक जी चौटाला जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री अशोक जी चौटाला कृपया मंच पर सादर आमंत्रित। श्री अशोक जी चौटाला। अशोक जी चौटाला शीघ्र पधारें। राजेंद्र कोश में पुस्तक का विमोचन हो रहा है और आज बहुत ही बड़ा दिन माना जाए। एक बहन के लिए भाई का प्यार और जैन सेन धाम के लिए
गुरुदेव ने 300 प्रतिष्ठाएं करवाई है, जिसमें आज पूनम श्रावण सुदी पूनम के दिन, रक्षाबंधन के दिन आज पहली प्रतिष्ठा गुरुदेव के हाथों जैन सेन धाम में हुई और विमोचन हो गया। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। हाँ, एक बात मेरी सब सुन लो, ये जिन शासन की शान जयंत सेन गुरुदेव है। क्या बात है, जरा जोर से, आज प्रतिष्ठा का दिन है, भगवान को विराजमान किया है, जरा जोर से, जयंत सेन गुरुदेव है, अज जयंत सेन गुरुदेव है, भक्तों के भगवान मेरा कल्याण करेंगे, तेरा कल्याण करेंगे। ओम कुर्मो निजपृष्ठे जिनबिंबम गंधर्वबिंबम गुरुबिंबम ध्वजकलशं धारय स्वाहा। ओम कुर्मो निजपृष्ठे गुरुबिंबम जिनबिंबम गंधर्वबिंबम गुरुबिंबम ध्वजकलशं धारय स्वाहा। ओम कुर्मो निजपृष्ठे जिनबिंबम गुरुबिंबम गुरुबिंबम चालू है, माइक बाहर है, आवाज है। मैं बोलूं? बाहर आ रही आवाज ओम कुर्मो निज पृष्ठे जिन बिंबम गणधर बिंबम गुरु बिंबम सीमेंट हाथ में कलशम धारय स्वाहा। ओम कुर्मो निज पृष्ठे जिन बिंबम गणधर बिंबम गुरु बिंबम कलशम धारय स्वाहा। ओम कुर्मो निज थाली वाले कौन है? कौन थाली वाला? हाँ, ये पास में। ओम कुर्मो निज पृष्ठे जिन बिंबम गणधर बिंबम गुरु बिंबम कलशम धारय स्वाहा। कौन है छापे लगाने वाला? कौन है? आप समझे ना, हाथ लगाओ, भाई जी लगाओ, सीमेंट लगाओ, भाई जी छापे वाले कौन है? छापा का किसने दिया? जीवा पर साक्षात सरस्वती विराजमान, जिनके मुखारबिंद से हमको धर्म की ओर अग्रसर करते करते लगभग पूर्णतः आज 1 महीना हो चुका है और नित्य प्रतिदिन नई छोटी छोटी सुक्तियों के माध्यम से हमारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार करने वाले ऐसे पूज्य मुनिराज श्री निपुण रत्न विजय जी महाराज साहब के मुखारबिंद से प्रवचन। आप शांति से अपना स्थान ग्रहण करें। गुरुदेव सिर्फ उनकी अस्वस्थता की वजह से हमारे बीच में से गए हैं, जबकि तन से मन से वो हमारे बीच में है। आप अपना स्थान ग्रहण करें। वरिष्ठ पूज्य मुनिराज श्री निपुण रत्न विजय जी महाराज साहब। नौकार मंत्र परिषद आराधक आयोजक परिवार भाई श्री चेतन जी कश्यप परिवार का, जिन्होंने निश्चित रूप से हमें बहुत ही सुंदर व्यवस्था, आवास व्यवस्था और हमारी नौकार मंत्र आराधना को निरंतर रखने में बहुत अच्छी भूमिका का वर्तन किया है। मैं आराधक परिवार की ओर से उनका अभिनंदन करते हुए और इस बात की क्षमा याचना चाहता हूं कि यदि हमारे आराधक परिवार में किसी भी श्रावक भाई बहनों की ओर से किसी प्रकार की कोई अवमानना हुई हो आपकी, तो उसके लिए पूरा नौकार आराधना परिषद आपसे करबद्ध मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम मांगता है। आराधना के उस क्रम के अंदर उन्होंने बहुत सुंदर बात योग इंशिका ग्रंथ में लिखी है। किसी भी आराधना की सफलता का माप तुम्हारे जीवन में तुम कैसे कर सकते हो, मूल्य और मूल्यांकन में बहुत फर्क पड़ता है। 1 किलो सोना और 1 किलो कोयला, सोना दिखने में इतना होगा लेकिन कीमत उसकी ज़्यादा होगी, कोयला दिखने में इतना होगा लेकिन कीमत उसकी कम होगी। तो माप और मूल्यांकन दोनों चीज़ों की
अगर तुलना करने जाओ तो बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। ऐसे अपनी काया के अंदर, अपने शरीर में भी देखो तो जीभ इतनी छोटी है, अगर उसकी कीमत करो तो बहुत कम, लेकिन मूल्यांकन करने जाओ तो जीभ का कितना मूल्यांकन होता है वो तुम भी जानते हो। इस पांचों इंद्रियों में सबसे ज़्यादा कीमत, सबसे ज़्यादा उपयोग अगर पूरे दिन में कोई जीव करता है तो इस जीव का ही करता है। इसलिए मूल्यांकन जब तक तुम नहीं समझ पाओगे उस समय तक तुम्हारे जीवन की कोई भी आराधना तुम्हें कभी फल देने वाली नहीं हो सकती। उपाध्याय यशो विजय जी महाराज ने भी इस 5 क्रम में साधना का मूल्यांकन बताया तो कहा कि पहला चरण उसका आता है प्रणिधान। किसी भी आराधना को प्रणिधान के रूप में स्वीकार करना चाहिए। प्रणिधान का मतलब होता है जिस समय तुम आराधना करते हो उस समय आराधना के अंदर तुम्हारा उस आराधना से जुड़ाव कैसे होता है, उसके पूर्व की स्थिति, आराधना के बाद की जो स्थिति है उसका भी वहाँ पे मूल्यांकन किया जाता है। प्रणिधान का मतलब होता है तुम्हारे मन वचन काया का जुड़ाव उन आराध्य से ऐसा होना चाहिए कि आराधना होने के बाद भी हर समय उसका ही स्मरण तुम्हारे दिल दिमाग में रहना चाहिए। द्रोणाचार्य ने जब पांडव और कौरवों को जो अभ्यास करवा रहे थे तब दुर्योधन, भीम, अर्जुन सबके उन्होंने अपने आप में उनकी स्थिरता कैसी है ये देखने के लिए उन्होंने उनको जंगल में ले गए। द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को पूछा, बोलो वो सामने आम का पेड़ है, उसमें से आम के पेड़ को तुम्हें निशान बनाना है, बोलो तुम्हें क्या क्या दिख रहा है। दुर्योधन ने कहा मुझे तो आम का पूरा पेड़ दिख रहा है। युधिष्ठिर को कहा अब तुम्हारा नंबर है, तुमको क्या दिख रहा है। वो कहा कि मुझे तो आम भी दिख रहा है, आम के आसपास की डालियां भी दिख रही है, पत्ते भी दिख रहे हैं। द्रोणाचार्य ने कहा ठीक बात है। फिर अर्जुन का नंबर आया, तुमको बोलो क्या दिख रहा है। अर्जुन कहता है मुझे आम के सिवाय कुछ भी नहीं दिख रहा है। बोलो किसका प्रणिधान सही है। एक को पूरा पेड़ दिख रहा है, एक को सिर्फ डाली और पत्ते दिख रहे हैं, लेकिन अर्जुन को सिर्फ आम दिख रहा है, आम के सिवा कुछ भी नहीं दिख रहा है। बोलो तुमको 9 दिन में क्या क्या दिखा। नवकाल के सिवा कुछ नहीं दिखा। अब यहां से जाने के बाद क्या क्या दिखेगा तुमको, यहां से जाने के बाद क्या क्या दिखेगा आपको। नवकाल के सिवा सब दिखेगा। ये सब लाइट बंद करा दो, सब टोटल लाइट बंद करा। अरे एवा दे ने पण આપણે શું કરવું જે છે એમ ચાલે। इसलिए प्रणिधान का मतलब यही होता है, लक्ष्य में सिर्फ जिसकी तुम आराधना करते हो उसी को लक्ष्य में बनाकर तुम्हें आराधना करनी चाहिए, उसके सिवा फिर कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। यह आराधना की सफलता के अंदर पहला चरण होता है। उसके बाद प्रणिधान तय हो जाता है तो प्रणिधान के साथ फिर आगे बढ़ना तो दूसरा चरण आता है विघ्न जय। आराधना के क्षेत्र में जब तुम आगे बढ़ते हो तो अनेक प्रकार के अंतराय खड़े होते हैं। पुण्य प्रवर्तमानानाम अंतराया बहुवो उत्तिष्ठन्ति। जब अच्छी प्रवृत्ति करने के लिए तुम प्रवृत्त होते हो तब बहुत सारे विघ्न आपके सामने आके खड़े रह जाते हैं। उस विघ्न के ऊपर विजय प्राप्त करनी पड़ती है। विघ्नों को देखकर कभी भी आराधना छोड़ना नहीं चाहिए। विघ्न जीवन में अच्छे काम में बहुत बार आते हैं, लेकिन उस समय अगर तुम डिग गए, उस समय अगर तुम चलित हो गए तो आराधना के क्षेत्र में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। भाट पचलाना के एक आराधक यहाँ पे भी आ भी गए थे, लेकिन आराधना के एक दिन पहले ही बाजार में गिर गए, पैर में फ्रैक्चर हो गया। तुमने 9 दिन आराधना की, उन्होंने 9 दिन हॉस्पिटल में आराम किया। इसलिए आराधना करना भी कोई तुम्हारे हाथ की बात नहीं है। आराधना को लक्ष्य बनाने के बाद उस आराधना के क्षेत्र में जब तुम आगे बढ़ते हो तो किसी प्रकार के विघ्न आए तो विघ्न के अंदर विजय प्राप्त करना सीखो, और जो विजय को प्राप्त करता है उसके बाद दूसरा चरण प्रवृत्ति का आता है
उस आराधना में तुम्हारी प्रवृत्ति परिणमन जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी हो जाए उतना करना चाहिए। आराधना का भाव आ जाए तो कल पे नहीं छोड़ना चाहिए, तुरंत उसमें प्रवृत्त होना, फिर आने वाले विघ्नों के ऊपर विजय प्राप्त करना। और विजय प्राप्त जो करता है आगे जाके उसको सिद्धि प्राप्त होती है, और सिद्धि के साथ ही व्यक्ति आगे उस आराधना को दूसरों को दे सकता है, यानी कि उसका मतलब होता है विनियोग करना। बिना कमाए दान दे सकते हो क्या? तुम्हारे पास कमाई हो उसके बाद ही तुम आगे उसको दे सकते हो। इसलिए नवकार जब तक तुम्हारे में सिद्ध नहीं होगा उसके पहले तुम अन्य को कभी भी उसका दान दे नहीं सकते, और दान दोगे तो वो कभी सफल भी नहीं होगा। इसलिए ज्ञानियों ने बहुत अच्छी बात यहाँ पे कही है। नवकार गिनने से सब काम हो जाते हैं, बराबर। कोई भी काम की शुरुआत करो तो तुमको नवकार गिनना चाहिए। अगर नवकार के प्रभाव से वो काम आपका सिद्ध हो जाता है तो यश किसको देना चाहिए? ये काम मैंने किया कि नवकार ने किया? नवकार ने किया, बराबर। तुम्हारी श्रद्धा नवकार के प्रति जो होती है उससे वो काम सफल हो जाता है। अगर तुमको काम में सफलता नहीं मिली, नवकार गिनने के बाद भी अगर आपका काम सिद्ध नहीं हुआ तो क्या समझना? बोलो। नवकार का पावर कम पड़ा, नवकार का प्रभाव कम पड़ा, काम नहीं होता है तो क्या करना? बोलो। काम हो जाए तो नवकार के प्रभाव से हो गया, काम नहीं हुआ तो क्या करना? देखो, एक बात होती है, शक्कर होती है ना, शक्कर को किसी भी चीज में डालो तो वो चीज मीठी होती है कि खट्टी होती है? वो चीज मीठी हो जाएगी, बराबर है। शक्कर को किसी में भी चीज में डालोगे, मिठाई में डालोगे तो मीठी, दूध में डालोगे तो दूध मीठा हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास 15 लीटर दूध है, कितना? उसके अंदर 1 चम्मच शक्कर डालो, बोलो दूध मीठा हो गया? तो फिर शक्कर गलत हो गई कि तुम गलत हो गए? 15 लीटर दूध में शक्कर कितनी डालनी पड़ेगी? बोलो, कितनी शक्कर डालोगे? जितना दूध होगा उतनी तो शक्कर आपको डालनी पड़ेगी। अगर कम शक्कर डालोगे और दूध मीठा नहीं होगा और दुनिया को कहोगे शक्कर में कोई दम नहीं, शक्कर से दूध मीठा नहीं होता है, चलता है क्या? जितना दूध होगा उतनी शक्कर उसमें डालनी पड़ेगी, उतनी शक्कर जाएगी तो दूध मीठा होगा। और तुम्हारा काम सफल नहीं हुआ तो समझ लेना कि नवकार की सिद्धि तुमको नहीं मिली। काम अगर नहीं होता है तो समझ लेना नवकार के प्रति जो श्रद्धा होनी चाहिए, जो मिठास होनी चाहिए, उसमें कमी आई है। काम तो तुम्हारा होना ही था, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा में कभी कमी आई होगी, तुम्हारा मन विचलित हुआ होगा। ये शक्कर कम डलती है तो दूध मीठा नहीं होता है, शक्कर को भी माप में डालना पड़ता है, तभी जाके तुम्हारी श्रद्धा से प्रभावित, तुम्हारी श्रद्धा से गिना हुआ नवकार तुमको हर काम में सफल दे सकता है। इसलिए जीवन के अंदर श्रद्धा और विश्वास नवकार के प्रति ऐसा होना चाहिए, दिल में नहीं, रोम रोम में श्रद्धा को लेकर जाना पड़ेगा। तुम्हारे सामने आंख बंद करो तो भी नवकार दिखना चाहिए, आंख खोलो तो भी नवकार दिखना चाहिए। नवकार को इस तरह अपने जीवन में सिद्ध करके यहाँ से जाना है। जाना तो है ना सबको? कल तो जाना ही है। बहुत सारे लोग आपका इंतजार करते होंगे, आपकी आराधना की अनुमोदना भी करते होंगे। बहुत अच्छी आराधना का ये प्रसंग, आराधना के साथ साथ भगवान के 5-5 कल्याणकों को देखने का तुमको सौभाग्य मिला। आज रक्षाबंधन के दिन दादा मुनीश्वर स्वामी और दादा गुरुदेव की अद्भुत प्रतिष्ठा का अवसर काश्यप परिवार ने बहुत अद्भुत लाभ लिया, अद्भुत अपने जीवन में पुण्य कमाया। आराधकों के साथ साथ प्रतिष्ठा का भी सुंदर अवसर उनको मिला। ऐसे बहुत बार
जीवन में अवसर मिले वो आए वो चले जाते हैं। बेटे को पिताजी ने कहा, बेटा जाओ बाजार में जाओ, एक पोस्ट कार्ड लेके आओ। बेटे ने पापा को कहा, पापा पैसे तो दो, ऐसे तो पोस्ट कार्ड लेने कैसे जाऊंगा। पापा ने कहा, पैसे से तो दुनिया ला सकती है, तू बिना पैसे के ला तो मेरा सच्चा बेटा तेरे को मानूं। बेटे ने कहा, ठीक है पापा, कोशिश करता हूं बिना पैसे के पोस्ट कार्ड लाने की। बेटा जाता है, आधे घंटे के बाद वापिस आता है, पापा के हाथ में पोस्ट कार्ड देता है। पापा ने पोस्ट कार्ड देखा तो दोनों तरफ लिखा हुआ पोस्ट कार्ड। पापा ने कहा, बेटे ये पोस्ट कार्ड लाया कि क्या लाया, ये तो दोनों तरफ लिखा हुआ है। बेटे ने कहा, कोरे पे तो दुनिया लिखती है, तुम लिखे पे लिखो तो मेरे सच्चे बाप तुमको मानूं। बात तो सही होगी ना, बेटे जैसे होंगे ऐसे बाप होंगे, बाप के जैसे बेटे होंगे। लेकिन बात तो सही है कि कोरे पे तो दुनिया लिख सकती है, तुम लिखे पे लिखो तो मेरे सच्चे बाप तुमको मानूंगा। इसलिए जितने भवों में नवकार हमको नहीं मिला, वहाँ तक तो हमारा संसार बढ़ता गया, कोई बात नहीं। लेकिन इतना अद्भुत, इतना प्रभावशाली, इतना महिमावंत नवकार जब हमको मिल ही गया है, नहीं मिला था वहाँ तक तो भले भटकते रहे, लेकिन मिलने के बाद भी इसी तरह अब संसार की उलझनों में संसार के इन भावों के अंदर अब थोड़ा सा दूर रहने का प्रयत्न करना चाहिए। चुप रहने से कुछ भी नहीं होता है। मौन रहने का मतलब ये नहीं होता है कि तुम मुंह बंद कर दो तो तुम्हारा मौन हो गया। मौन किसको कहते हैं ये बोलो। नमो किसको कहते हैं? नमो किसको कहते हैं? जो झुक जाता है, जो नम्र बन जाता है, जिसमें अहंकार खत्म हो जाता है, जो सरल बन जाता है, उसके आगे नमस्कार होता है। नमो का उल्टा क्या होता है? मौन। तुमको दोनों में से क्या पसंद है बोलो। नमो पसंद है कि मौन पसंद है? दोनों पसंद है। बोलो, घर पसंद है कि जैन सेन धाम पसंद है? दोनों पसंद है। अब ये दो नाव में पैर रखते हो ना, इसलिए डूब जाते हो। एक का सिलेक्शन करना कभी भी। दो में से अगर दो ऑप्शन आपके पास होते हो तो आपको एक को सिलेक्ट करना चाहिए। बोलो, नमो पसंद है कि मौन पसंद है? नमो। मौन पसंद नहीं है? मौन भी पसंद नहीं है। जहां जैसा होगा दोनों पसंद करना पड़ेगा। इसके अंदर ऑप्शन तो कैसे आपको देता हूं, लेकिन नमो के साथ साथ मौन का भी अनुसरण करना पड़ेगा। अब मौन किसको कहना? तुम्हारी भाषा में मौन कहो तो मुंह बंद करना, यही मौन है क्या? मुंह बंद करने के बाद भी कितने इशारे करते हो, मुंह बंद करने के बाद भी कितने विकल्प चलते हैं, इसको मौन कहना क्या? इसका मतलब अगर मौन से मोक्ष मिलता हो तो पृथ्वी काय के सब जीव मोक्ष में जाएंगे, अब काय के सब जीव मोक्ष में जाना चाहिए। तेहु काय, वायु काय और वनस्पति काय, सब जीवों का उसी भाव में मोक्ष होना चाहिए। बोलो, मौन बराबर है? तुम जिसको मौन समझते हो वो मौन अगर साधना है, वही मौन अगर मोक्ष दिला सकता है तो पृथ्वी काय, अप काय, तेहु काय, वायु काय और वनस्पति काय, सभी जीव मोक्ष में चले जाएंगे। उनको मनुष्य जीवन नहीं लेना पड़ेगा, उनको आराधना करने का कोई काम नहीं। तो फिर मौन कौन सा होना चाहिए बताओ। उपाध्याय यशो विजय जी महाराज ने मौन की सुंदर व्याख्या की है। सुलभम वाग अनुच्चारम मौन में केंद्रीय स्वपी पुद्गलेषु अप्रवृत्तिषु। सुलभम वाग अनुच्चारम मौन में केंद्रीय स्वपी। सभी एकेंद्रियों के जीवों में यह मौन आपको सुलभ मिलेगा। कौन सा? तो कहते हैं वचन का मौन। लेकिन यहाँ उपाध्याय जी महाराज ने
एक ऐसे मौन की व्याख्या की है, पुद्गलेषु अप्रवृत्तेषु, पुद्गल के भावों में अप्रवृत्त होना, पुद्गल के प्रवृत्तियों में अप्रवृत्त होता है, वह मौन सबसे अधिकतम उपयोगी है। और उस मौन की व्याख्या करते हुए कहा, मौन मन का भी होना चाहिए, मौन वचन का भी होना चाहिए और मौन काया का भी होना चाहिए। मन का मौन यानी कि मन से, आत्मा से जितने भी भिन्न तत्व हैं, आत्मा से भिन्न क्या क्या है बताओ? आत्मा से भिन्न, आत्मा से पर जितने पदार्थ है उन सब का चिंतन न करते हुए आत्मा से जिनका संयोग है, ऐसे दर्शन, ज्ञान, चारित्र जो आत्मा के गुण है उन्हीं का चिंतन करना, आत्मा से भिन्न पर पदार्थों का कभी चिंतन नहीं करना, कभी उनके पदार्थों के अंदर प्रवृत्त नहीं होना, यह मन का मौन है। और पाप आदि विचारों का संकल्प विकल्पों के अंदर नहीं पड़ना, ये मौन मन का मौन है। वचन से अपशब्द नहीं निकलना, वचन के द्वारा किसी का अहित हो, वचन के द्वारा किसी को दुर्भाव आता हो, वचन के द्वारा किसी को किसी प्रकार का द्वेष खड़ा हो, ऐसे वचन का उच्चारण नहीं करना और शुभ और अच्छे वचन बोलना, ये वचन का मौन कहा जाता है। काया के अंदर देखो तो पापमय प्रवृत्तियों से मुक्त हो जाना, ये काया का मौन कहा जाता है। इसलिए मौन की व्याख्या कभी ये मत करना कि मुंह से नहीं बोलना वही मौन होता है। मन, वचन और काया तीनों से किसी भी अशुभ प्रवृत्तियों में जुड़ना नहीं, यही सबसे बड़ा मौन होता है। और ऐसे मौन का स्वरूप समझकर यहाँ से घर जाने के बाद ऐसे मौन को अनुसरण करना, मौन के साथ उल्टा कर दो तो नमो, यानी कि जीवन में कितनी भी सिद्धि प्राप्त हो जाए हमेशा झुककर चलना। नमस्कार सभी के अंदर होता है, लेकिन उसको प्रकट करने का प्रयत्न करना चाहिए। जीवन में ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं करना जिसके कारण कोई ये नहीं कहना चाहिए देखो नवकार का आराधक वो इस तरह की प्रवृत्तियाँ करता है। इसलिए जो जो आज्ञा भगवान ने आपको दी है, जो जो आज्ञा भगवान ने अपने जीवन में अपनी देशना के अंदर अपने मुख से भगवान की वाणी प्रवृत्ति जिस तरह से आपके जीवन में भी इसी तरह का प्रवृत्ति का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि नवकार हमेशा आपके स्मरण में रहना चाहिए। नवकार की महिमा को आपने 9 दिन तक श्रवण किया, अलग अलग प्रसंगों के द्वारा आपको नवकार की महिमा समझाई गई। श्रवण तो 9 दिन का हुआ, लेकिन स्मरण तो जीवन भर रहना चाहिए। जहाँ जाओ, जहाँ पे हर पल प्रतिपल हर क्षण हमेशा नवकार आपके जीवन में इस तरह श्वासोश्वास के साथ स्मरण करते रहना, क्योंकि जीवन का लक्ष्य कभी खाना पीना और कमाना हो सकता है। कोई भी तुम्हें प्रश्न करे खाते क्यों हो, कमाते क्यों हो, तो कहते हो खाने के लिए। खाते क्यों हो तो कि जीने के लिए। जीते क्यों हो, जीते क्यों हो, मरते नहीं इसलिए। जब तक मरण नहीं आएगा तब तक जीना ही पड़ेगा, क्या करेंगे। लेकिन जीना भी एक प्रवृत्ति होती है, अच्छा जीवन जी के जाना और जीवन में इस तरह की प्रवृत्तियों में भी प्रवृत्त होना जिससे आने वाला जीवन तुम्हारा सफल हो जाए। इस तरह गला मेरा बहुत थक गया है। अब तुम तो नहीं थकेगे, क्योंकि गला और गल्ला 2 चीजें होती है। तुमको क्या पसंद है बोलो, गला अच्छा कि गल्ला अच्छा? गल्ला कहते हैं श्रावक का गल्ला अच्छा होना चाहिए, साधु का गला अच्छा होना चाहिए। तुम्हारा गल्ला अच्छा होता है ना तो तुम अच्छे काम कर सकते हो, बराबर।
गल्ला का मतलब क्या होता है? गल्ला का मतलब ये, गल्ला अच्छा हो तो अच्छा काम कर सकते हो, गला अच्छा हो तो भगवान का स्मरण अच्छी तरह कर सकते हो, भाष्य जाप अच्छा कर सकते हो, नवकार का स्मरण, नवकार का उच्चारण अच्छा कर सकते हो। और गला और गल्ला दोनों अच्छा होना चाहिए, और दोनों अच्छे होने से धर्म के अंदर तुम दोनों में अच्छी प्रवृत्तियाँ कर सकते हो। इसलिए हम अब संसार के गुलाम न बनते हुए नवकार के गुलाम बने, नवकार को हमारा मालिक बनाए। बोलो तुम मालिक हो के गुलाम हो? एक बार है ना, क्या हुआ, पिताजी और बेटे दोनों घूमने के लिए जा रहे थे। एक आदमी गाय का कान पकड़ के उसको ले जा रहा था। गाय को रस्सी बांधी हुई थी, रस्सी उसके मालिक के हाथ में थी। मालिक आगे चल रहा था, गाय पीछे पीछे चल रही थी। बेटे ने पिताजी को प्रश्न किया, पापा ये कौन है, वो ये कहाँ लेके जा रहे हैं बैल को? पापा ने कहा, देख जो आगे चल रहा है ना वो मालिक है, जो पीछे चल रहा है वो गुलाम है। मालिक कौन? जिसके हाथ में रस्सी है वो मालिक, और जो रस्सी से बंधा हुआ है वो कौन है? गुलाम। इसलिए पापा ने कहा ये आगे चल रहा है ना ये मालिक है, और जो पीछे चल रहा है वो गुलाम है। इतने में आगे जाते गाय भड़क गई। गाय भड़क गई तो रस्सी तुड़ा के सीधी गाय भाग गई। अब मालिक पीछे पीछे भाग रहा है। अब वापिस बेटे ने पापा को पूछा, पापा अब मालिक कौन, अब गुलाम कौन? पापा ने कहा वो आगे दौड़ रही है ना वो मालिक, जो पीछे दौड़ रहा है वो गुलाम। 9 दिन तो तुम मालिक बन के बैठे थे, धंधा पानी छोड़कर। 9 दिन कौन थे? तुम मालिक थे, तुम्हारे पीछे सब लगा हुआ था। कल से तुम क्या, किसके? घर के गुलाम। हाँ, कल जाके बहनों को रसोड़ा संभालना पड़ेगा। कल की तो रसोई तुमको अच्छी भी नहीं लगेगी, देखना। कल बनाने में बहुत कट्ठी पड़ेगी उनको रसोई, बिना मन से कल रसोई बनेगी। 9 दिन तक मेहनत नहीं की ना उन्होंने, इसलिए अब थोड़ा कठिन लगेगा, क्योंकि अब गुलाम बनना है। अभी तक तो 9 दिन हम सब छोड़ के आए थे, तो 9 दिन तो हम अपने मन के मालिक बने हुए थे। 9 दिन हमने अपने मन को नवकार में लगा दिया था, हमारी काया को भी नवकार में लगा दिया था। लेकिन अब घर जाने के बाद भी इस नवकार से छूटना मत, नवकार को छोड़ना मत। नवकार के बिना तुम्हारा दिन पूरा नहीं होना चाहिए। सुबह उठते समय कुछ भी हो, लेकिन रात को सोते समय सोचना, आज का दिन नवकार के बिना मेरा जाना नहीं चाहिए। क्योंकि 2 बात होती है, एक तो कमाई में नुकसान होता है ना, कमाई कम होती है तो नफे में नुकसान। मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुनना। कमाई में अगर नुकसान होता है, कमाई कम होती है तो नफे में नुकसान। कमाई कम होती है तो नफे में नुकसान। लेकिन अगर कमाई न हो और घर की मूड़ी चली जाए तो किस में नुकसान होता है? मूड़ी में नुकसान हो जाता है। अब तुमको कौन सी बात पसंद है, नफे में नुकसान के मूड़ी में नुकसान? नफा नहीं होता है तो चलता है, लेकिन मूड़ी में नुकसान। इसलिए किसी दिन नवकार गिने बिना, पैसे कमाए बिना दिन चला जाएगा तो चल जाएगा, वो नफे में नुकसान होगा। लेकिन नवकार गिने बिना एक भी दिन आपका गया है ना, तो क्या होगा? नफे में नुकसान हो जाएगा। नफे में नहीं होगा, तुम्हारी मूड़ी में नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैंने कल जो भी नियम दिया है उस नियम को पालने का बड़ा प्रयत्न करना। दिन में अवश्य एक बार 108 नवकार का स्मरण करना। अद्भुत जीवन में पुण्य का उपार्जन करोगे तो काश्यप परिवार जैसे तुमको भी अद्भुत अद्भुत ऐसी प्रतिष्ठाओं का, ऐसे चातुर्मास का लाभ आपको मिलेगा। 18 साल से विनंती का क्रम चला और इस वर्ष 2016 में उनकी यह चातुर्मास की विनंती गुरुदेव ने स्वीकार की
अद्भुत चातुर्मास के साथ प्रतिष्ठा का भी अद्भुत आयोजन हुआ। काश्यप परिवार के 9 सदस्यों ने आज 18 अगस्त यानी कि 8 और 1 9 ये भी अखंड आंक का संयोग और उसमें दादा मुनीश्वर स्वामी की गुरुदेव की अद्भुत प्रतिष्ठा का लाभ लिया। आप लोगों ने यहाँ पे पधार कर इस काश्यप परिवार को सुंदर लाभ दिया। इसी तरह आराधना में हमेशा संलग्न रहना। अभिधान राजेंद्र कोश में यह पुस्तक गुरुदेव के प्रवचनों की है। मैं तुमको प्रश्न पूछूं क्या? जेके संघवी साहब, आपको भी पूछूं? हमारे संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अहमदाबाद के भी जो अध्यक्ष है उनको भी पूछता हूं। आपको कोई सहज पूछे अभिधान राजेंद्र कोश के 7 भाग किसने बनाए, क्या कहोगे? हमारे दादा गुरुदेव ने। गर्व होगा ना? आपके गुरु महाराज ने बनाए, वो भी कितने वर्ष की उम्र में बनाए? 60 वर्ष की उम्र में। 60 वर्ष की उम्र में तो शुरुआत की, उसको पूर्ण करते करते 14 साल लगे। और आपको ये भी आश्चर्य होगा, राजेंद्र कोश का प्रकाशन, प्रथम प्रकाशन इसी रतलाम नगरी के अंदर हुआ था। रतलाम नगरी के अंदर बहुत अद्भुत इतिहास बने हुए हैं। पीताम्बर विजेता की पदवी भी आचार्य भगवंत यतीन्द्र सुरेश्वर जी महाराज को इसी रतलाम नगरी में मिला है। जीवन काल के 7 चातुर्मास आचार्य भगवंत यतीन्द्र सुरी महाराज ने इसी रतलाम के अंदर किए हैं। रतलाम के अंदर त्रिस्तुतिक संघ का अद्भुत इतिहास रतलाम से जुड़ा हुआ है। मोहन खेड़ा तीर्थ का जो अद्भुत उद्धार हुआ, मोहन खेड़ा तीर्थ की नींव, और नींव में जिसने पत्थर रखा ऐसे कन्हैया लाल जी काश्यप, वो भी रतलाम के ही अद्भुत रत्न थे। ऐसे रतलाम से बहुत सारे इतिहास जुड़े हुए। लेकिन राजेंद्र कोश की जब बात आती है, दादा गुरुदेव ने बनाया। 60 वर्ष की उम्र में 14 साल की अद्भुत मेहनत उन्होंने की। लेकिन 14 साल के अंदर ये राजेंद्र कोश जब लिखा गया ना, गुरुदेव ने बहुत कड़ा परिश्रम किया था। हम तो मात्र गर्व ले ले, कोई राजेंद्र कोश की प्रशंसा कर दे तो अपनी छाती 36 की होती है तो 40 की हो जाती है। क्यों? मेरे गुरुदेव ने लिखा, हमारे गुरुदेव ने लिखा। लेकिन श्रम भी उन्होंने कैसा किया था। आचार्य हरिभद्र सूरी महाराज ने जब 1444 ग्रंथों की रचना की होगी, आचार्य हेमचंद्राचार्य महाराज ने जब करोड़ों श्लोकों की रचना की होगी, कैसे उनके जीवन में उन्होंने श्रम किया होगा। लिखते लिखते पूरा जीवन पूरा कर दिया उन्होंने। गुरुदेव भी जब राजेंद्र कोश लिखते थे ना, कितनी भगवान की आज्ञा का पालन करके लिखते थे। जैना का भी उन्होंने पूरा पालन किया। सुबह साई भिगोते, शाम तक उसका आलेखन करते, रात को उसमें कपड़ा डाल के साई सुखा के कपड़ा सुखा देते, जिससे रात को किसी भी जीवों की विराधना नहीं होती। रात को कभी वो लिखते नहीं थे। ऐसे 14 साल का अद्भुत परिश्रम करने के बाद ये राजेंद्र कोश का निर्माण हुआ। हम तो इतना कह सकते हैं, राजेंद्र कोश के 7 भाग है। वाघजी भाई, वजन कितना है? हाँ, 35 किलो उसका वजन है बराबर। उसके पेज कितने हैं संघवी जी? 10,000 पृष्ठ है उसके। उसमें श्लोक कितने हैं? 3.5 लाख श्लोकों का संकलन गुरुदेव ने किया है। अब बताओ, 7 भाग आपने देखे, कभी उठाए क्या? उठाए कि नहीं उठाए? उठाना चाहिए। देखो तो सही कितना वजन है उसका। इतने हल्के भी नहीं है कि तुम उसको उठा लो। 35 किलो उसका वजन। अगर देखने जाओ तो 10,000 पृष्ठ उसके अंदर जुड़े हुए हैं। उसके बाद 3.5 लाख श्लोक उसके अंदर लिखे हुए हैं। और बहुत सारी अद्भुत बातें उसके अंदर लिखी हुई है।
गुरुदेव जब साइला के अंदर लक्ष्मणा साध्वी की सज्जाई बना रहे थे, तब सज्जाई तो बन रही थी, लेकिन ये कोई इतिहास नहीं मिला कि लक्ष्मणा साध्वी कब किसके शासन में वो हुई थी। बहुत सारा ढूंढने के बाद गुरुदेव को पता चला, अरे खाक में छोरा हो, गांव में ढंढेरा पिटने से क्या मतलब, कहाँ देखने जाना अपने को, अपने पास ही खजाना पड़ा है राजेंद्र कोश, उसी को खोल के देखो। और राजेंद्र कोश खोल के देखा, लौ पे देखा लक्ष्मणा साध्वी, और लक्ष्मणा साध्वी का पूरा इतिहास उस पृष्ठ पे गुरुदेव को मिल गया। पूर्व की 24 के अंदर लक्ष्मणा साध्वी हुई। एक छोटी सी माया करने के बाद जंगल में लक्ष्मणा साध्वी जी गए थे, एक चकले और चकली का दृश्य देखा, मन में सोचा, अरे भगवान ने यह विधान हमारे लिए क्यों बनाया, वो तो अवेदी थे, हमारी वेदी की वेदनाओं को उन्होंने समझा नहीं, और चौथे व्रत का पालन करने का नियम भगवान ने भला क्यों बनाया होगा। साध्वी जी ने मन में ये विचार किया, वापिस मुड़ते समय पश्चाताप हुआ, अरे मैंने भगवान के ज्ञान में कहाँ शंका कर ली, मुझे इसका प्रायश्चित करना चाहिए। लेकिन पैर में कांटा लग गया। अब सुकन जानकर भगवान के पास पहुंची और भगवान से प्रश्न पूछती है, अगर किसी जीव के मन में ये प्रश्न आए तो भगवान इसका प्रायश्चित क्या होना चाहिए। भगवान को पता चल गया था इसी के मन में ऐसा प्रश्न आया, लेकिन भगवान ने कुछ भी नहीं कहा। उसने प्रश्न पूछा कि ऐसा किसी के मन में विचार आए तो उसका प्रायश्चित क्या, भगवान ने प्रायश्चित दे दिया और लक्ष्मणा साध्वी ने प्रायश्चित कर भी लिया। कैसा प्रायश्चित किया बताए आपको। 2 वर्ष तक सीके हुए चने खाए, 2 वर्ष तक बफे हुए चने खाए, उसके बाद 10 वर्ष तक छठ का पावना, उसके ऊपर अट्ठम का पावना, 4 उपवास, 5 उपवास, इस तरह 10 साल तक किया। उसके बाद 2 साल मात्र सीके हुए चने, 2 साल बफे हुए चने, 14 साल तक कंटिन्यू मासक श्रमण के पावने मासक श्रमण। 14 साल कितने, 14 साल तक मासक श्रमण के पावने मासक श्रमण हुए। और अंतिम 20 वर्ष में लगातार आइमिल की तपस्या। बोलो 50 साल की इन तपस्या के बाद भी उस लक्ष्मणा साध्वी का इतना संसार बढ़ गया। इतनी बड़ी तपस्या करने के बाद भी पूरा संसार का इतना उन्होंने संसार की अभिवृद्धि कर ली, क्योंकि तप इतना बड़ा, माया कितनी, इतनी छोटी सी। माया सिर्फ क्या थी, मैंने विचार नहीं किया, ये कहा था उन्होंने, किसी जीव को विचार आया। इतनी छोटी माया, इतना बड़ा प्रायश्चित, उसके बाद भी संसार उनका बढ़ गया। अपनी माया इतनी, तप हमारा इतना। अब सोच लेना संसार हमारा भी कितना बढ़ सकता है। वो लक्ष्मणा साध्वी का इतिहास उस राजेंद्र कोश में से मिला। गुरुदेव ने सुंदर सज्जाई की वहां पे रचना कर दी। ऐसा अद्भुत राजेंद्र कोश गुरुदेव ने बनाया, लेकिन हमने आज तक उसको पढ़ा नहीं। खोला किसने किसने राजेंद्र कोश का पहला पेज खोला, बोलो क्या पढ़ा मांगीलाल जी। खोला, उसके बाद क्या किया, खोला उसके बाद वापस बंद कर दिया, क्योंकि आगे फिर हमारी ताकत नहीं थी कुछ करने की। हमने दर्शन कर लिया और दर्शन करने के बाद वापस उसको बंद कर दिया, क्योंकि गुरुदेव ने पूरा प्राकृत भाषा के अंदर वो कोश लिखा। लेकिन अब उन भाषाओं का इतना प्रचलन नहीं होने के कारण अब सब इंग्लिश में पढ़ गए। इंग्लिश अच्छा आई तो कहते हैं पढ़ा लिखा। इंग्लिश सबको अच्छी लगती है, लेकिन मूल भाषा संस्कृत प्राकृत ये सब भाषाओं को हमने छोड़ दिया, जिसके कारण राजेंद्र कोश मात्र दर्शन के लिए रह गया। आज विद्वानों की सभा के अंदर राजेंद्र कोश को इस तरह पूजा जाता है। हमारे यहाँ पे अजीत शेखर सूरी महाराज जब कुलपाल जी तीर्थ में गुरु सातम के दिन गुरुदेव को मिलन हुआ,
उस दिन संयोग से गुरु सप्तमी थी। आचार्य भगवंत अजीत शेखर सुई महाराज पिछले वर्ष जिनका थाना में चातुर्मास हुआ था, उन्होंने हजारों लोगों के बीच में ये शब्द कहे, राजेंद्र सुई महाराज को हमने आंखों से नहीं देखा, लेकिन उन्होंने जो उपकार राजेंद्र कोश बना के हम पर किया है, आज हमको शास्त्र के संशोधन में कहीं भी कोई समस्या आती है तो हम सबसे पहले राजेंद्र कोश को खोलते हैं और हमारी समस्या का वहीं पे समाधान हो जाता है। एक विद्वान आचार्य भगवंत अपने मुख से ये बात जब कहते हैं तो हमारी छाती, हमारा हृदय भी गदगद हो जाता है कि विद्वान व्यक्ति ही उस राजेंद्र कोश की कीमत समझ सकते हैं। हमारे लिए तो मात्र राजेंद्र कोश आरती उतारो, पूजा करो और दर्शन करो, जीवन को धन्य बनाओ, बस इससे अधिक राजेंद्र कोश में हमारा प्रवेश हो नहीं सकता। लेकिन गुरुदेव ने राजेंद्र कोश के शब्दों के ऊपर बहुत वर्षों पहले प्रवचन दिए थे। उन प्रवचनों के आधार पे प्रवचन की पुस्तक यहाँ पे प्रकाशित हुई है। राजेंद्र कोश में भाग 1 और भाग 2, उसमें पहले भाग का पुनः प्रकाशन हुआ है। पुस्तकों को पढ़ने की आपकी आदत भी नहीं है, मात्र पुस्तक पढ़ लेते हो, लेकिन क्या पढ़ते हो तुम जानो। एक महाराज साहब ने पुस्तक एक व्यक्ति को पढ़ने दी, 8 दिन के बाद वो पुस्तक वापस देने आया। महाराज साहब ने पूछा पुस्तक कैसी है? महाराज साहब पुस्तक बहुत अच्छी है, बाइंडिंग तो इसका बहुत मजबूत है, और पेपर तो एकदम अच्छे हैं, प्रिंटिंग भी बहुत अच्छी हुई है इसमें, और मुझे लगता है 50 वर्ष तक इस पुस्तक को अभी आगे कुछ नहीं होगा। महाराज साहब ने पूछा पढ़ा क्या? पढ़ने का तो समय नहीं मिला, बाकी पुस्तक बहुत अच्छी छपी हो, बाइंडिंग भी बहुत अच्छा है, इसलिए तुम ऐसे पुस्तकों को पढ़ते नहीं हो। इसलिए राजेंद्र कोश में ओपन बुक एग्जाम का यह पेपर निकाला गया है। 2 महीने का आपके पास समय है, 2 महीने के अंदर आपको ये पुस्तक का वांचन करना है, पेपर भरकर वापिस यहाँ पे हमको पहुँचाना है, और उसके बाद आपका नंबर लगेगा तो आपको पुरस्कार भी मिल जाएगा। और इस तरह राजेंद्र कोश की यह पुस्तक का वांचन करना, गुरु महाराज ने कितना सुंदर चिंतन और मनन लिखा है। अब 11:30 बज गई है, देववंदन का समय हो रहा है, प्रवचन का तो अब समय पूरा भी हो गया है। अब कल सुबह में यहाँ पे देववंदन होंगे, आपको 5-5 माला आके गिनना है। उसके बाद गुरुदेव यहाँ पे आपको निष्कासन विधि करवाएंगे। निष्कासन के बाद यहाँ पे वरघोड़ा निकलेगा, वरघोड़े के बाद आपका पारना होगा, पारने के बाद क्या होगा वो तुम जानो, क्योंकि जाना तो सबको है, लेकिन नौका के अंदर जो शुभ भाव आपके प्रश्न पुस्तक का करवा दिया ना, बस वहाँ पे पुस्तक और प्रश्न पेपर दोनों वहाँ पे रख दो, जो कीमत हो वो कीमत दे के आप लोग ले लेना। लेकिन 9 दिन के अंदर आपके हृदय में जो भी शुभ भाव प्रकट हुए हैं उन शुभ भावों को साथ में लेके जाना। प्रभावना तो लेके जाओगे, लेकिन प्रभावना के साथ साथ नौका के प्रभाव को भी आपके अंदर लेके जाना। आपकी दृष्टि में, आपके ज्ञान में जो आपने नौकार देखा है उस नौकार को हमेशा आपके हृदय में बसा कर रखना, हमेशा नौकार के प्रति समर्पित रहना। चलो उपवास के बचकान किसी को लेना है? उपवास। परम कृपाळु परमात्मा श्री मुनीश्वर स्वामी जी चरणों में मारा कोटि कोटि वंदन। दादा गुरुदेव श्री राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेब चरणों में मारा कोटि कोटि वंदन। वर्तमान आचार्य गच्छाधिपति राष्ट्रसंत आचार्य देव श्री जनसेन सुरेश्वर जी महाराज साहेब चरणों में मारा कोटि कोटि वंदन। अत्र विराजमान मुनि भगवंतों साध्वी जी भगवंतों ने मारा कोटि कोटि वंदन। चातुर्मास आयोजक अने आजना प्रतिष्ठाना स्वद्रव्यथी लाभार्थी श्री काश्यप जी परिवार को मेरे कोटि कोटि वंदन। सर्व तपस्वी भाइयों बहनों सकल संघ, अभी गुरुदेव की जो रूम है
मैं वहाँ सुबह गया था तो कोई पोस्टर लगा था, इसके ऊपर लिखा था कि जो खुद तरते हैं और दूसरों को तारने की क्षमता रखते हैं, ऐसे समर्थ जो है, वैसे सद्गुरु हम सबको तो मिले हैं, मगर उनकी सबसे ज़्यादा कृपा काश्यप जी परिवार के ऊपर हुई है। अपने गुरुदेव जनसेन सूरीश्वर जी महाराज साहेब नवकार के परम आराधक है और उनके रोम रोम में नवकार मंत्र बसा है। हम बोलते हैं कि शरीर के ऊपर 3.5 करोड़ रोम है, उनके हर रोम में नवकार है और वो उनका पुण्य बल है और वो संघ के ऊपर रोज फलदायी रहता है। काश्यप परिवार ने ऊपर 2 गुना फायदा वो है कि चेतन जी के गुरु तो जनसेन सूरीश्वर महाराज रहे हैं, उनके दादाजी के गुरु, अपने दादा गुरु यतेंद्र सूरीश्वर जी महाराज भी रहे हैं। रतलाम में उन्होंने श्री संघ के त्रिस्तुति के बहुत से कार्य किए हैं, मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहता हूँ समय के हिसाब से, वो बहुत सराहनीय है। मगर चेतन जी काश्यप ने, हम बोलते हैं ना कि बाप से बेटा सवाया होता है, चेतन सिंह काश्यप ने एक नया इतिहास रचा है। उन्होंने जब गुरुदेव का चातुर्मास करवाया, उसका प्रवेश किया, तो पूरी दुनिया में उसका नाम हो गया कि इतने आदमी 35-40 हजार आते हैं। इसके बाद ये चातुर्मास की व्यवस्था 1800 नवकार मंत्र के आराधक जो करीब 3.5 करोड़ से ऊपर नवकार की यहाँ आराधना हुई। ये जनसेन धाम के एक अणु इससे पवित्र हुए और पवित्र करने के लिए काश्यप परिवार ने स्वद्रव्य से परमात्मा का यहाँ मंदिर बनाया। हमारे में बोलते हैं कि दर्शनम देवस्य दर्शनम पापनाशम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। अगर ऐसे तीर्थंकर परमात्मा के दर्शन से जो इतना मिलता है, तो जो तीर्थंकर परमात्मा की मूर्ति का, जिन बिंब का, गुरु बिंब का यहाँ प्रतिष्ठान कराएगा और ऐसे अपने समर्थ आचार्य इनकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, इनके बाद ये परमात्मा को जो हम सब दर्शन करेंगे, तो खुद बखुद ये जनसेन धाम आज से तीर्थ स्वरूप हो गया है। और जैसे ही दिन बढ़ते जाएंगे, ऐसे ऐसे ये तीर्थ की, ये भूमि की गरिमा बढ़ती जाएंगे। ये तीर्थ बनाने में काश्यप परिवार ने जो ईंट, चूना, पत्थर, रेती जो भी डाला है, जितने परमाणु इसमें यूज हुए हैं, इससे उनका पुण्य पल्योपम बढ़ता जा रहा है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता हूँ। उनको, उनके पूरे परिवार को और माताजी तेज कुंवर बा को फिर से मेरे ओर से और पूरे त्रिस्तुति संघ की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और त्रिस्तुति संघ में आपने जो इतिहास रचा है, खास करके चेतन जी समाज सेवी तो है, इसके बाद जन जन की सेवा करने के लिए वो राजकारण में भी आए। असल में यहाँ जो भाई साहब भी बैठे हैं, ग्राम प्रधान साहब, तो माफ करना, जो राजकारण में आते हैं ना, वो धर्म में उनके पास यह समय नहीं मिलता है या इतने वो कार्यरत नहीं रहते हैं। मगर हमारा गौरव एक काश्यप परिवार है, चेतन जी है, कि जो ये सब करते हुए भी, जैसे हमारे में बोला जाता है कि जो कर्मे सुरा वो धर्मे सुरा, वो चेतन जी ने करके बताया है कि सब है, मगर उनके दिल में तो ये गुरु, ये मेरा समाज, वो मेरे तीर्थंकर भगवान है,
फिर से मैं पूरे परिवार को और यहाँ जो आराधक आए हैं सबको खूब खूब अभिनंदन देता हूँ। मेरी ओर से, संघ की ओर से जय महावीर, जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद श्री वागजी भाई साहब वोरा। प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर हमारे बीच ग्रामीण विधायक श्रीमान मथुरालाल साहब डामर भी उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुग्रह करूंगा कि वे संक्षिप्त उद्बोधन देकर श्री गुरु जी के चरणों में नमन करते हुए छोटी सी बात मैं भाई साहब ने खड़ा कर दिया तो मैं बताना चाहूँगा। जो छोटा सा गांव में मैं रहने वाला हूँ, तो मैं छात्रावास में पढ़ाई करी थी, आदिवासी छात्रावास में पढ़ाई करी थी। मैं पढ़ नहीं पाया, सातवीं तक पढ़ा। तो कोई ऐसे ही मतलब संगत, तो मैंने विचार किया, जैसे बेटा मेरा बड़ा हुआ, गांव में छठी पास करी, मैं पढ़ने के लिए कहाँ भेजूँ। मैंने विचार किया, मैंने आदिवासी छात्र हॉस्टल में पढ़ाई करी, अच्छा वातावरण नहीं है, तो मैं रतलाम में आया शहर में। तो ऐसा कोई छात्रावास धार्मिक आस्था का हो तो कोई हो, तो जैसे कोटावाला बाग, वहाँ छठी से पाँचवीं पास करके छठी में प्रवेश छोटा बच्चा का मैंने दिलवाया। 7 साल तक जैन गुरुकुल में पढ़ाई करी बच्चे ने। आज भी वो आपका जैन लोगों का धर्म, वातावरण, ओकार, मंत्र, इसी भावना से आज भी हमारा परिवार में, आदिवासी एक परिवार का हूँ। खाना पीना बचपन से ही नहीं है, जैसे जैन लोगों का खाना पीना ऐसा ही हमारा खाना पीना है। और मैं धन्यवाद चेतन परिवार को धन्यवाद देता चाहता हूँ कि सद्बुद्धि हमको ऐसे व्यवहार करने का अवसर मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। परम गुरु भक्त और सदैव क्रियाशील शहर के प्रति नवीन चिंतन ऐसे चातुर्मास आयोजक और शहर विधायक श्रीमान चैतन्य साहब काश्यप से मैं अनुग्रह करूँगा कि वे इस पूर्णिमा के अवसर पर और प्रतिष्ठा के शुभ मुहूर्त पर हमें अपने मंगल उद्बोधन दें। श्री साहब चैतन्य साहब काश्यप। जिनेश्वर देव के चरणों में सत वंदन। प्रातः स्मरणीय प्रभु श्रीमद विजय राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में सत वंदन। यहाँ विराजित जिनकी निश्रा में आज का प्रतिष्ठा महोत्सव व यह नौकार आराधना का क्रम निरंतर चल रहा है, ऐसे राष्ट्रसंत वर्तमानाचार्य पूज्य गुरुदेव जैन सेन सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में सत नमन। यहाँ विराजित मुनिवृंद, साध्वी वृंद, सबके चरणों में सत नमन। एवं इस तीर्थ के ऊपर नौकार आराधना में एक नया इतिहास रचने वाले सभी पूरे देश भर के नौकार महामंत्र के आराधक बंधु, रतलाम श्री संघ के, रतलाम के सकल जैन श्री संघ के सभी प्रमुख जन, हमारे इष्ट मित्र, आज का अवसर जिन मंदिर की प्रतिष्ठा, गुरु मंदिर की प्रतिष्ठा और उसके साथ नौकार आराधना का 10 दिन का यहाँ जो 9 दिन का क्रम चला और उसमें जितने आराधकों की एक ऐतिहासिक उपस्थिति हुई, मैं ऐसा मानता हूँ कि यह संयोग कहीं न कहीं गुरुओं के आशीर्वाद से हमारे परिवार को प्राप्त हुआ। सामान्यतः प्रतिष्ठा होती है, चातुर्मास होते हैं, आराधना भी होती है, परंतु सबका सहयोग मिलना, चातुर्मास का काल है, चातुर्मास काल में प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकलना और उसी के साथ में आराधना के अंदर आज रक्षाबंधन का दिन है, इस दिन प्रतिष्ठा का होना निश्चित तौर पर यह एक संयोग दादा गुरुदेव यतीन सुरेश्वर जी महाराज साहब के आशीर्वाद से, पूज्य गुरुदेव जैन सेन सुरेश्वर जी महाराज साहब के आशीर्वाद से इसका पूरा हमारे परिवार के ऊपर जो आशीर्वाद रहा, यह एक हमें पुण्य कार्य करने का अवसर मिला। हमारे दादी जी जमकुबाई कश्यप का लंबे अरसे से चातुर्मास का गुरुदेव की भावना 90-91 में थी, तब भी चातुर्मास
के लिए बीच बीच में हम विनती करते रहे, परंतु सामाजिक व्यवस्थाओं में जो मुझे जवाबदारी मिली थी, जब जब मौका आया तो गुरुदेव ने कहा कि यहाँ समाज में आवश्यकता है, कानू बानू में जावरा के अंदर से जाना आवश्यक है। 2001-2 में इंदौर का चातुर्मास था, तो उस समय लगा कि इंदौर एक प्रमुख क्षेत्र है तो वहाँ चातुर्मास आवश्यक है। पिछले वर्ष जब भावना हुई थी तब पेपराल का विषय आया कि पेपराल के अंदर तैयारी हो चुकी है और वह तीर्थ तैयार होने को है, और अभी इस वर्ष में पेपराल करके अगले साल में रतलाम आऊँगा तो फिर एक साल आगे बढ़ा। निश्चित तौर पर इस तरीके के योग मुझे लगता है कोई न कोई संजोग बनना था, क्योंकि मंदिर की प्रतिष्ठा पिछले वर्ष नहीं हो पाई, तो सिंहस्थ के आयोजन के कारण से मुहूर्त नहीं था, परंतु ये संजोग अपने आप में बना। हम अपने परिवार की ओर से अपने आप को धन्य मानते हैं कि आज इस अवसर पर यहाँ पर 1700 से 1800 आराधकों की भावना आई थी कि वे आराधना के लिए आने वाले हैं, और आज उसी संख्या में देश भर के सभी आराधक यहाँ आए और 9 दिन तक आज समापन का दिन है, आपने यहाँ आराधना करी। मैं ऐसा मानता हूँ ये तीर्थ भूमि पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद, उनकी निश्रा से और आपकी आराधना से एक जागृत अवस्था में आ चुकी है, और निश्चित यह तीर्थ त्रिस्तुतिक समाज के लिए, रतलाम त्रिस्तुतिक संघ के लिए ही नहीं, पूरे संघ व समाज के लिए एक ऐतिहासिक तीर्थ भूमि के रूप में परिवर्तित होगा। और यहाँ पर जब भी हम देखते हैं रतलाम त्रिस्तुतिक संघ में लंबे समय तक हमारे सारे वरिष्ठ जन, पहले एक भावना थी कि मंदिर बने, मंदिर बनने की एक बात थी, तब नीमवाला उपाश्रय में बड़े लंबे समय तक गुरुदेव की मूर्ति हमारे वहाँ पर अतिथि के रूप में रही, कई लंबा समय निकला। फिर गुरुदेव ने ही यहाँ पर आकर के नीमवाला उपाश्रय मंदिर का प्रतिष्ठा महोत्सव करवाया। फिर हमारे मन में थी, हमारे दादी जी के मन में, हमारे वरिष्ठ जन डॉक्टर प्रेम सिंह जी राठौड़, सरदार मल्ली साहब संघवी, सबकी भावना थी कि रतलाम नगर के अंदर एक अपना भार तीर्थ भी हो। और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए जब यहाँ की भूमि की चर्चा आई, तब गुरुदेव के यहाँ रतलाम में हमारे ओसी जैन साहब ने भूमि का दान देने का उन्होंने संकल्प लिया। हमारे परिवार को गुरुदेव ने मंदिर, गुरु मंदिर और बाकी सारे कामों के लिए जो उनकी भावना से हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ, निश्चित तौर पर इसी के क्रम में यहाँ पर उपाश्रय का निर्माण सुराणा परिवार के द्वारा, लुनावत परिवार के द्वारा भोजनशाला का निर्माण हुआ, और कई सहयोगियों ने धर्मशाला के निर्माण में सहयोग करा। ये सारे क्रम को मिला करके आज जो वातावरण बना है, मैं ऐसा मानता हूँ कि रतलाम की भूमि पर यह एक बहुत बड़ा हमारे को गुरु का आशीर्वाद है। और आज इस अवसर पर अभी आराधना का आज अंतिम दिन है। मैं सभी आराधकों से, मेरे परिवार की ओर से जितनी व्यवस्था हुई, हमारे संघ के परिषद के साथी, तरुण परिषद के साथी, संघ के साथियों ने जो भी व्यवस्था आप लोगों के लिए हो सकती थी करने का भरपूर प्रयास करा है, परंतु अगर कोई उसमें खामी रही हो तो मैं हमारे परिवार और सबकी ओर से आपसे मिच्छामी दुक्कड़म करता हूं। अभी भाई अशोक जी ने आराधकों की ओर से मिच्छामी दुक्कड़म कहा, मेरे का एक क्रम है, परंतु जो आराधक यहाँ पर है वे हमारे अतिथियों ने मिच्छामी दुक्कड़म वाली बात कहने का मौका नहीं होना चाहिए था। यह तो काम हमारा है जो यहाँ पर अतिथि के लिए खड़े हैं, और रतलाम त्रिसंघ की ओर से जो मुझे, मेरे परिवार को लाभ मिला, निश्चित तौर पे सारे संजोगों को मिलना। और आज का दिन रक्षाबंधन का दिन है, और मैं पुनः आप सब लोगों को इस आराधना के अवसर पर आप सबका स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और जब ज़्यादा एप्लीकेशंस आई थी, जब आप लोगों की भावनाएं ज़्यादा आई थी, तब गुरुदेव ने कहा था कि इस बार ये निश्चित करो कि जो आ रहे हैं वो कम से कम 9 साल तक आराधना करें। गुरुदेव की भावना थी कि जो कई नए व्यक्ति, क्योंकि आज सुजान मल्ली साहब का हमने वहाँ बहुमान करा, आज 51 वर्ष से लगातार आराधना कर रहे हैं, परंतु आज जो नए लोग जुड़े हैं इस वर्ष ही जिन्होंने आराधना के अंदर भाग लिया है, क्योंकि यह संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई है, परंतु गुरुदेव की भावना के अनुसार वे 9 वर्ष तक कम से कम नौकार की आराधना करें। नौकार की महिमा, नौकार के बारे में जब भी जितना हम कहें, जैन दर्शन के अंदर नौकार के जो पदों की व्याख्या हमारे बीच में हुई, और गुरुदेव ने जितने सतत रूप से नौकार की आराधना और उसके महत्व को पूरे देश के सामने लाए हैं, आप सब लोग इसका लाभ लेंगे। मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। वो पुनः रतलाम त्रिस्तुतिक संघ को मेरे परिवार की ओर से मैं धन्यवाद देता हूँ कि यह अवसर उन्होंने दिया, और पूज्य गुरुदेव की निश्रा में यह जो प्रतिष्ठा आयोजन हुई है, निश्चित तौर पर यह तीर्थ पूज्य गुरुदेव की भावना के अनुसार, त्रिस्तुतिक संघ की भावना के अनुसार एक अच्छे
प्रतिष्ठित तीर्थ के रूप में, एक जागृत भूमि के रूप में स्थापित होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ जय हिंद, जय जिनेंद्र। जैन जैन धाम में अंजनी शलाका, लहराए गगन में प्रभु की पताका।